पार्थसारथी फाउंडेशन के सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपकी सेकेंड एनिवर्सरी पे मेरी बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सच ए वंडरफुल थिंग हमारे इस्कॉन संस्था का सारी है टू बी इन कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, टू बी कृष्णा कॉन्शियस एंड टू बी कृष्णा कॉन्शियस। उसका मूल है श्रवणम एंड कीर्तनम एंड आई थिंक आज 2 साल से पार्थसारथी फाउंडेशन इज़ जस्ट डूइंग दैट, श्रवणम एंड कीर्तनम। सब भक्तों को कितनी सुंदर फैसिलिटी दे रहे हैं, घर बैठ के भक्तों का संग भी मिल रहा है, सत्संग हो रहा है। सो सच ए वंडरफुल जॉब यू आर डूइंग। सो मुझे आज कोई विशेष टॉपिक दिया नहीं था, कहा था कि किसी भी टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मैंने सोचा है आज हम भरत महाराज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो भरत महाराज का ये विषय जो है ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद अध्याय 8 में आता है। तो मैंने एक रैंडमली एक श्लोक पिकअप किया है 5.8.8। इसका ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट पढ़ूँगी। मेरे पास में ये हिंदी भागवतम नहीं है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ ट्रांसलेशन। श्रीमद् भागवतम की जय। सो श्रीमद् भागवतम, रीडिंग फ्रॉम कैंटो 5 चैप्टर 8 वर्स नंबर 8। Gradually Maharaj Bharat became very affectionate towards the deer. He began to raise it and maintain it by giving it grass. He was always careful to protect it from the attacks of tigers and other animals, and when it itched, he petted it, and in this way he always tried to keep it in a comfortable condition. He sometimes kissed it out of love. Being attached to raising the deer, Maharaj Bharat forgot the rules and regulation for the advancement of spiritual life, and he gradually forgot to worship the Supreme Personality of Godhead. After a few days, he forgot everything about his spiritual advancement. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. From this we can understand how we have to be very cautious in executing our spiritual duties by observing the rules and regulation and regularly chanting the Hare Krishna Mahamantra. If we neglect doing this, we will eventually fall down. We must rise early in the morning, bath, attend Mangalarti, worship deities, chant Hare Krishna Mahamantra, study the Vedic literature, and follow all the rules prescribed by the Acharyas and the spiritual master. If we deviate from this process, we will fall down. Even though we may be very highly advanced, as stated in Bhagavad Gita 18.5, Yagna Dana Tapa Karma Na Tajyam Karyam Evatat Yagno Danam Tapaschaiva Pavanani Manishina. Acts of sacrifice, charity, penance are not to be given up but should be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great soul. Even if one is in the renounce order, he should never give up the regulative principles. He should worship the deity and give his time and life to the service of Krishna. He should also continue following the rules and regulations of austerity and penance. These things cannot be given up. One should not think oneself very advanced simply because one has accepted sannyas order. The activities of Bharat Maharaj should be carefully studied for one's spiritual advancement. से वंडरफुल टॉपिक है ये। मतलब भागवतम के एक्चुअली हर एक लीला और हर एक भक्तों की लीला में कितना कुछ सीखने का है, बट ये विशेष है ये पर्टिकुलर लीला, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि भरत महाराज भाव के स्तर पे है और भाव के स्तर से वो गिरते हैं। तो भक्तों के लिए इसमें से सीखने का बहुत कुछ है। ये भरत महाराज का जो ये जीवन है, जिनके नाम पे ये पूरा भारत वर्ष है, ये ऋषभ देव के पुत्र थे, पुण्यशाली राजा थे, भगवान के पुत्र थे। ऋषभ देव इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो वे भगवान के पुत्र थे, अच्छे गुणों से युक्त थे और पुण्यशाली राजा थे।
अपने राज्य में जो नागरिक है, जनसामान्य है, उनकी रक्षा करते थे। एक आइडियल आदर्श गृहस्थ थे। घर में भी जब वे राजा थे तभी भी अपनी सारी गृहस्थ ड्यूटीज़ की पालन करते हुए, घर में भी भक्ति करते हुए, जो वरिष्ठ है उनका आदर करते हुए है, जो उनसे छोटे हैं उनको स्नेह करते हुए, जो उनके बराबरी के हैं उनके साथ में संग करते हुए, ऐसी मतलब उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की। एकदम एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र। एंड देन एट द राइट टाइम, यहाँ पे लिखा गया है कि 10 मिलियन ईयर्स राजा के स्तर पे, राजा के पोजीशन पे भोग करने के बाद वे अपने राज्य को अपने पुत्रों में जो है उनको दे के वे चले जाते हैं वन की ओर। कहाँ जाते हैं? वन माने हिमालय जाते हैं। हिमालय में गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना के वे अपना भजन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक परफेक्ट किंग जिसको पता है कब किस चीज़ को कितना समय देना चाहिए, सच एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। मैं अक्सर मेरे प्रवचनों में कहते रहती हूँ कि हमारा जीवन तो अभिमन्यु जैसा है, जिसको चक्रव्यूह में जाना तो आता था लेकिन चक्रव्यूह से बाहर जाना नहीं आता था। जैसे हम तो गृहस्थ जीवन में एंटर हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन से बाहर आना मतलब कब उसको विराम देना है वो हमें आता नहीं है। हम सोचते और 5 साल और 2 साल और 5 साल ऐसे करते करते लास्ट मोमेंट तक, अंत काल तक भी पुत्रों पौत्रों से क्या कहते हैं, आसक्ति बढ़ाते हुए जीवन को त्याग करते हैं या शरीर को त्याग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये एक आदर्श राजा है, हर चीज़ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। कब कितना साल राज्य करूँगा, उसके बाद कब भगवान के ऊपर में एकाग्रत होकर भजन करूँगा, तो सब ठीक से उन्होंने प्लानिंग किया और 10 मिलियन ईयर्स के बाद में सब कुछ त्याग किया। और ये त्याग करना इतनी छोटी बात नहीं है, स्पेशली जब आपके पास में ईज़िली कुछ अवेलेबल है, आपके सामने है, फिर भी उसको अपनी स्वेच्छा से त्याग करना, त्यजना, ये आसान नहीं है। अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं और फिर फाइनली हम निराश होकर कहते हैं छोड़ो नहीं होगा, और ये अलग बात है। लेकिन आप स्वस्थ हो, आपके पास सारे इंद्रिय भोग की व्यवस्था है। इस भौतिक जगत में अगर कोई थोड़े सालों के बाद, बूढ़े होने के बाद में अगर आसक्ति छोड़ भी देते हैं तो 90% वो आसक्ति इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि और शरीर में सामर्थ्य नहीं है उस इच्छाओं को पूरा करना, तो इसीलिए वे और वो आशा छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ उन दिनों में जो ये राजा होते थे, वे उनकी जीवन काल भी बहुत लंबी होती थी और उनका शरीर वगैरह भी स्वस्थ होता था। जैसे हमारे जैसे मतलब 45 क्रॉस करने से ही ABCD हो जाता है, मतलब एस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये सारे शुरू हो जाता है। तो अपने आप से इच्छाएं थोड़ी जो है कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, पूरा राज्य, एवरीथिंग। इनफैक्ट होटल की एक रूम जो होती है उसमें भी हम चेकआउट टाइम के 1 घंटा पहले उस रूम को त्याग नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ, मैं कल ही आई हूँ हैदराबाद से कुछ दूरी पे एक जगह है यादगिर गुट्टा। मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोग इस फोरम में इस जगह को जानते होंगे, लेकिन कोई साउथ इंडियन है आंध्रा के या तेलंगाना के तो वे ज़रूर जानते हैं, क्योंकि यादगिर गुट्टा का मंदिर बहुत ही फेमस है। पहाड़ पे नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है और वहाँ पे इस्कॉन के जो कुकटपल्ली, इस्कॉन कुकटपल्ली के भक्तों ने वहाँ पे रथ यात्रा ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें उन्होंने हमें बुलाया था। तो हम गए थे सुबह, पहले यादगिर गुट्टा का दर्शन किया, वहाँ से हम गए थे एक सुंदर जगह सुरेंद्रपुरी। उसके बारे में 1 मिनट बताऊँगी, हालांकि क्लास के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर जगह, अगर कभी आप आएंगे तेलंगाना, आंध्रा में, और अगर आप ये जगह जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सुरेंद्रपुरी नाम की ये जगह है। सुरेंद्रपुरी माने स्वर्गलोक, इंद्रपुरी। और यहाँ पे बहुत सारे डायोरामास बने हुए हैं और ब्रह्मलोक, पाताल लोक, यमलोक, वैकुंठ लोक,
मतलब हर एक आपको जो एक फीलिंग आएगी जब आप अंदर जाओगे, एक तो डायरामाज, बादल, एक अफेक्ट्स, और अलग अलग जो है भागवतम में जितनी भी लीला है, महाभारत में, रामायण में, उस सबको उन्होंने वहाँ पे बनाया है। और भारत में जितने भी मंदिर है, जगन्नाथपुरी से लेके द्वारका तक या उडुपी कृष्ण से लेके ऊपर वृंदावन मथुरा तक, हर एक मंदिर को वहाँ पे उन्होंने रेप्लिका बनाई है, छोटी छोटी सी मंदिर बनाई है। जैसे हमारे मदन मोहन का मंदिर हो, गोस्वामियों का या अलवारों का, हर एक मंदिर वहाँ पे है। मतलब आप अगर उसमें एंटर होंगे तो 2-3 घंटे के बाद जब आप बाहर आओगे, आपने पूरे भारत में सारे विग्रहों का दर्शन कर लिया है, सारे मंदिरों का, वैष्णव देवी से लेकर मतलब हर एक मंदिर वहाँ पे है। तो हम सुबह गए थे यादगिर गुट्टा, वहाँ से हम गए थे सुरेंद्रपुरी, और फिर पहाड़ पे ही जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे हमने एक रूम, मतलब हमारे जो भक्त हैं उन्होंने रूम बुक किया था कि हम थोड़ा सा फ्रेश अप होंगे और उसके बाद हम रथ यात्रा के लिए जाएंगे। तो यूजुअली होटल में क्या है, तो 24 घंटे का चेक इन चेकआउट होता है। तो हम तो सिर्फ गए और जो है फ्रेश हुए, जो भी है नहाना धोना, और इमीडिएटली हम निकल गए। तो वहाँ पे जो रिसेप्शन में थे वो मतलब ऐसे ही हमने उनको प्रसाद दिया सिंहाचलम का। तो बात कर रहे थे कि यूजुअली बहुत ही सुंदर जगह थी, मतलब आपके कमरे में ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन में है। एक तो पहाड़ के ऊपर था, बहुत सारे बंदर थे, और हाँ, हमारे कमरे से भगवान की यादगिर गुट्टा का जो मंदिर है नरसिम्हा स्वामी का, उनका कलश और गोपुरम दिख रहा था। तो बहुत बड़ा आनंद आ रहा था। तो वो रिसेप्शन में जब हम चाबी दे रहे थे कि बस हम चेकआउट कर रहे हैं, तो वो हमसे मतलब ऐसे ही बात कर रहे थे कि यहाँ जो आता है, अगर चेकआउट टाइम 10 बजे का है तो 10:05 पे कमरा छोड़ेगा, लेकिन एक 5 मिनट भी इस कमरे को छोड़ने की मतलब जो हमने, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, पैसा दिया है तो हमें वसूल करना है, हम कैसे छोड़ देंगे कमरे को, मतलब उतना हमें। लेकिन आप लोग आए और आप साथ ही साथ निकल जा रहे। फिर हमने कहा नहीं, हमें रथ यात्रा में जाना है, नीचे ही हमारी, पहाड़ के नीचे हमारी रथ यात्रा शुरू हो रही है। तो मैं मन में सोच रही थी कि एक रूम का भी अगर इंसान पैसा देता है तो सोचता है कि नहीं, मुझे पूरा उसको वसूल करना है। लेकिन यहाँ पे महाराज भरत के पास में दुनिया के सभी ऐशो आराम थे, सब कुछ अनुकूल था, लेकिन फिर भी वो अपनी स्वेच्छा से भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ त्याग करते हैं। और जैसी भी परिस्थिति में है, वे भगवान की सेवा कंटिन्यू करते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम कभी कभी नए भक्त को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, तो हम जैसे कहते हैं ना कि टीवी मत देखिए, ये मत करिए, ये मत करिए, पर ये मत करिए के साथ साथ क्या करिए ये भी बोलना पड़ता है। मतलब डोंट डू, लेकिन फिर डूज क्या है, डोंट्स और डूज दोनों कहना है। नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि डोंट तो करेंगे, लेकिन अगर जो डू है, मतलब जो करना है वो नहीं करेंगे, तो वो समय नष्ट है। जैसे कोई बोलेगा ठीक है, आपने कहा टीवी नहीं देखना है, नहीं देखेंगे, मूवीज़ नहीं देखना है, नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, अब जब आप टीवी नहीं देख रहे हो, मूवी नहीं देख रहे हो, तो उस खाली समय को आप कैसे भर्ती कर रहे हो, मतलब उसमें फिर आपको चैंटिंग ऐड करना है, श्रवणम ऐड करना है, करेक्ट। तो उस तरह से भक्ति में डूज भी होते हैं और डोंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ त्याग तो कर दिया, और त्याग करने के बाद क्या किया, अपना पूरा समय भगवान की सेवा में। जब वे राजा थे तो बड़े आडंबर से, मतलब बड़े शान से भगवान की सेवा करते थे। जो भी मतलब रिच पैराफिनेलिया जो अवेलेबल होता है, उससे भगवान की सेवा कर रहे थे। और यहाँ पे जब उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, फिर भी भगवान की सेवा कंटिन्यू की, जो मिल रहा था उसमें ही। वहाँ पे जो भी वो ट्विग्स होते हैं, जैसे कोई झाड़ में जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उसी से वे भगवान की सेवा करते थे, लेकिन सेवा नहीं रोकी है। मैं इसीलिए मुझे ज़्यादा इस पे जोर दे के कह रही हूँ। हम कल जब वहाँ थे यादगिर गुट्टा में नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में, वहाँ पे सोने के कमल पुष्प उन्होंने बनाए हैं। और फिर जब जैसे हम लोग को VIP दर्शन में ले गए थे, तो वहाँ पे हमसे पूजा करवाई है। तो वहाँ पे सोने के भगवान को कमल के पुष्प, एक एक नाम नरसिम्हा स्वामी का कह रहे थे और भगवान को सोने के पुष्प अर्पण कर रहे थे। तो इतना रॉयल मंदिर अगर आप देखेंगे तो मतलब मैंने सुना है कि केवल इस मंदिर को बनाने के लिए कोई 300 करोड़ खर्चा किया है। बहुत ही सुंदर मंदिर। तो उसी तरह से भरत महाराज
इतने मतलब क्या कहते एक स्तर पे पूजा करते थे भगवान की। और यहाँ पे भी जब वो यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया में रह रहे, फिर भी उन्होंने अपनी जो है भगवान की पूजा जो है बंद नहीं की। जहाँ वहाँ जो मिलता था उससे वे सेवा करते थे, और अपनी भक्ति में, अपने तप में, अपने ऑस्टेरिटीज़ में वे इतना मतलब कहते हैं ना सिंसियर थे कि वे फाइनली भाव के स्टेज में आ गए। भाव के स्टेज में आना मतलब भगवान का एक एक नाम बोलते हुए अश्रु बहते थे, सारे सिम्टम्स आते थे उनको, और इतनी बढ़िया से उनकी भक्ति चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन एक घटना घट गई। वहाँ पे एक मादा हिरन आई। गंडकी नदी के पास में एक मादा हिरन पानी पी रही थी। वो गर्भवती थी। जब वो पानी पी रही थी तो वहाँ पे उसे गर्जना सुनाई दी, एक शेर की गर्जना। और जब एक शेर की गर्जना सुनते हैं और हिरन तो क्या होता है, डर जाते हैं। और ये तो गर्भवती थी, तो डर से पानी पीते पीते जब ये शेर की गर्जना सुनी तो उसने क्या किया, नदी के ऊपर से छलांग लगाई दूसरी ओर जाने के लिए, शेर से बचने के लिए। लेकिन वो गर्भवती थी, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, मन में भय था। जब मन में भय होता है तो आधा शक्ति तो उधर ही ख़त्म हो जाती है। तो जब वो छलांग लगा रही थी तो छलांग लगाते समय गर्भपात हो गया। तो जो उसका जो बच्चा है वो पानी में गिर गया, और उसने छलांग लगा के डर के मारे सामने के तट में एक गुफा के अंदर चली गई। और वहाँ पे शक्तिहीन, एक तो डर से थी, गर्भवती भी थी, गर्भपात भी हो गया था, वहाँ पे अपना प्राण त्याग कर दिया। और ये सारी घटना को महाराज भरत देख रहे हैं, और उन्होंने देखा कि ये छोटा सा बच्चा पानी में तैर रहा है। तो उनको अभी दया आ गई, क्योंकि उसकी माँ तो मर गई है। तो उन्होंने साथ ही साथ क्या किया, उस हिरन को अपनी गोद में ले लिया, पानी से निकाल दिया। अब क्या हुआ, अब शुरू हुई एक नई कहानी। जब से ये हिरन महाराज भरत के पास आ गई, तब से जो है महाराज भरत इस हिरन पे बहुत ही क्या कहते हैं आसक्त हो गए। इस हिरन का पालन पोषण करना, उसे खिलाना, उसकी रक्षा करना, उसकी तरफ देखना, उसके साथ खेलना, जैसे आज के हमने इस श्लोक में पढ़ा, उसको आलिंगन करना, चुंबन करना। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो है इस हिरन पे जो है उनकी आसक्ति बढ़ गई। और इतनी बढ़ गई, जैसे आज के श्लोक में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, इतनी आसक्ति बढ़ गई कि धीरे धीरे उनकी भक्ति, उनकी साधना कम हो गई, और कम होते 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 बंद हो गई। और फिर क्या हो गया, उनको हिरन के सिवाय और कुछ भी सूझता नहीं था। अगर कभी शाम होते हुए हिरन दिखाई नहीं देता तो उन्हें चिंता हो जाता कि कहीं मेरे हिरन को किसी ने, कोई क्रूर प्राणी ने खा तो नहीं लिया, वो ठीक तो है। और कभी एक शाम जब वो हिरन मिला नहीं, शाम तक वापस नहीं आया हिरन का बच्चा, तो उसे ढूंढते हुए वे चले गए। और आप अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी बातें एकदम सुनने से हमें आश्चर्य हो जाता है कि भाव के स्टेज के भक्त की ऐसी बातें। तो हिरन को, जहाँ जहाँ हिरन चलता है उसके चरण की जो मुद्रा है माटी पे, उसको देख के भरत महाराज कहते, ओ पृथ्वी धन्य हो गई, यहाँ मेरे हिरन के जो है चरण कमल के जो है यहाँ पे निशान पड़ गए हैं, तो पृथ्वी आज धन्य हो गई है। तो उस तरह से वे हिरन के मोह में इतने पड़ गए कि फाइनली जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो उनके मन में केवल हिरन था। वे भगवान को पूरी तरह से भूल गए थे। और जिस तरह से भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेबरम तम तमिवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। क्योंकि उन्होंने हिरन के बारे में ध्यान किया, स्मरण किया अंतकाल में। अब क्या हो गया, उनको दूसरे जन्म में हिरन का शरीर मिला। तो ये है हमारे आज का टॉपिक कि भाई ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ, और इससे हमें क्या सीख लेनी है। ऐसा उनके साथ में क्यों हुआ, इतने बड़े भक्त थे, कैसे हिरन से आसक्त हो गए, क्या था इसके पीछे कारण। अवश्य आचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उनके गुरु नहीं थे। क्योंकि गुरु नहीं थे, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं था, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं था, इसलिए वे गलत दिशा में चले गए। और हम ये देखते हैं एक्चुअली उन्होंने जो किया
वो पूरी तरह से गलत है हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो सात्विक भाव थे। उनको हिरण पे दया आई, तो ये तो एक अच्छी भावना है कि किसी की मदद करना, किसी पे दया करना, जो एक अनाथ बच्चा है उसको देखना, रक्षा करना। फिर भी हम इसे गलत क्यों कह रहे हैं? हम सेम थिंग देखते हैं सौबर मुनि को भी दया आई लेकिन पतन हो गया। भरत महाराज को दया आई, पतन हो गया। तो दया से पतन कैसे हो सकता है? दया तो एक अच्छा गुण है, तो उसका मतलब दया के साथ कुछ और मिसिंग है रेसिपी में। खाने में अगर सब कुछ डाला है लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब नमक नहीं डाला, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो दया है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे, फिर पतन कैसे हो गया? उसका मतलब कुछ मिसिंग था। वो मिसिंग क्या था? तो वो मिसिंग था कि गुरु नहीं थे, एकांत में कर रहे थे। सौबर मुनि जब पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे कोई गुरु नहीं था उनको टोकने के लिए कि अरे तुम गरुड़ के मामले में तुम क्यों पढ़ रहे हो, गरुड़ जैसे एक भक्त के साथ तुम क्यों अपराध कर रहे हो। तो उनको किसी ने टोका नहीं। तो टोका नहीं इसलिए क्या हो गया? कंपैशन तो था बट इंडिपेंडेंट था। मतलब दया तो थी लेकिन स्वतंत्र दया है। और कंपैशन हो या पैशन हो, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो डेंजरस है। मतलब वेदर आप दया करो या किसी पे राग करो, मतलब प्रेम या राग, काम करो या दया करो, कुछ भी करो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है, अगर स्वतंत्र होता है बिना किसी के गाइडेंस के, तो वो डेंजरस होता है। जिस तरह से सौबर मुनि का भी पतन हो गया और भरत महाराज का भी पतन हो गया। तो सबसे बड़ी शिक्षा आज के इस एपिसोड से ये है कि हाँ, गुरु की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी भक्त की हमारे जीवन में ज़रूरत है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, किस लिए उनका पतन हो गया? हम आज इस पतन को आसानी से याद रखने के लिए इसको एक एक्रोनिम देंगे, 4R, 4R जो ये इंग्लिश का लेटर है, ये 4 चीज़ों की वजह से उनका पतन हो गया। R फॉर रेड्यूस्ड साधना। उन्होंने क्या किया था? भरत महाराज ने इस मादा हिरण, इस छोटे बच्चे हिरण के लिए अपनी साधना को कम कर दिया था। यहाँ पे वे फंस गए। साधना कम करना माने अपने जो प्रिस्क्राइब्ड जप है, जैसे हमारे इस्कॉन डिवोटीज हम लोग 16 माला करते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, प्रसाद लेते हैं, क्लास सुनते हैं, आरती अटेंड करते हैं, ये जो हमारा रेगुलर साधना का ये है। तो उनका भी जो ये रेगुलेटेड जो साधना था, उन्होंने साधना कम कर दी। क्योंकि साधना कम कर दी तो क्या हो गया? साधना होता है एक कवच जैसा, एक नरसिंह कवच जैसे कहते हैं ना, एक कवच होता है। हम कुछ भी करें, अगर हमारी साधना इंटैक्ट है, हमारा जप इंटैक्ट है, हमारा श्रवण कीर्तन परफेक्ट है, तो वो हमें बचाता है माया से। लेकिन जब हम अपना कवच खुद ही तोड़ देते हैं तो फिर माया से हमें कौन बचाएगा? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? साधना कम कर दी थी। धीरे धीरे अगर 16 करते थे तो 8 माला करने लगे, 8 करते थे तो 4 करने लगे। अगर पहले उठ के संध्या वंदन करना था तो कुछ और करने लगे। पहले हिरण के बारे में चिंता करने लगे। धीरे धीरे क्या है, उन्होंने साधना बंद कर दी। क्योंकि दया करना तो गलत नहीं है। शिवानंद सेन ने भी दया की थी एक कुत्ते के ऊपर में। अब कोई तर्क कर सकता है कि शिवानंद सेन को भी उस कुत्ते से इतनी माया क्यों हो गई, कुत्ते को प्रसाद देना, कुत्ते को देखना। हाँ, लेकिन शिवानंद सेन में और इनमें एक डिफरेंस ये हो गया कि इन्होंने हिरण के से आसक्त होकर साधना कम कर दी, लेकिन शिवानंद सेन ने कुत्ते पे आसक्ति माने वे उसको भक्त बनाना या उस पर कृपा दिखाना चाह रहे थे। वे चाह रहे थे कि उस कुत्ते का भी उद्धार हो, लेकिन यहाँ पे उद्धार का कोई कोई इंटेंशन नहीं था। वे आसक्त हो गए थे और अपनी साधना भी कम कर रहे थे। जिस तरह से हमें एरोप्लेन में कहा जाता है कि वेयर योर ओन मास्क देन पुट मास्क फॉर अदर्स। पहले अपना मास्क पहनो, ऑक्सीजन मास्क, उसके बाद दूसरों की मदद करो। तो यहाँ पे अगर साधना उन्होंने कंटिन्यू रखी होती और साथ ही साथ उस हिरण की सेवा करते, उसकी मदद करते, तो उनकी भक्ति जीवन की रक्षा होती थी। साधना कम होना माने जिस तरह से हमारी ट्रैफिक लाइट में नहीं होता, पहले ऑरेंज लाइट दिखती है, उसके बाद में रेड लाइट, और रेड लाइट मतलब डेंजर है, उसके बाद अगर आप क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो साधना कम होना माने हमारे जीवन की ऑरेंज लाइट
बत्ती जल रही है, ऑरेंज बत्ती, अब हमें बहुत केयरफुल होना है, फिर से हमें सतर्क हो जाना है कि समवेयर क्या हो रहा है मेरा। एक्चुअली और एक समस्या है, अगर कभी समझो हमारी साधना कम भी हो गई किसी कारण, जैसे परिस्थिति अनुकूल नहीं है या शरीर अस्वस्थ है या ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है कि हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑरेंज लाइट ही है, रेड लाइट नहीं है। लेकिन रेड लाइट कब होती है? जब सेकेंड आर हमारे जीवन में आता है। पहले तो रेड्यूस्ड साधना, और फिर रेड्यूस्ड साधना के लिए एक रीजनिंग, माने तर्क करना, माने अपने आप मन में ऐसा सोचना, इट्स ओके, नहीं करने से क्या हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, मेरा शरीर ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस में बहुत सारे प्रेशर है, मैं नहीं कर पाया आज 16 माला, तो क्या हो गया, इट्स ओके। ऐसे भी ऐसा नहीं है कि 16 ही करना है। एक बार भी कोई अगर मन से पवित्र से एक बार भी कृष्ण का नाम बोले तो डिलीवर हो जाता है, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 16 ही करना है, कभी किया कभी नहीं किया तो क्या हो जाएगा। तो ये जो हम रीजनिंग शुरू करते हैं ना, ये रेड लाइट है, ये रेड लाइट है, वो ऑरेंज लाइट थी, नहीं करना, कम करना, वो ऑरेंज लाइट है। अब ये जो हम रीजनिंग करते हैं, अपने आप को हम तर्क देते हैं कि हाँ ठीक है, चलता है, होता है, ये हो गया रेड लाइट हमारे जीवन में। तो आर फॉर रिड्यूस्ड साधना एंड आर फॉर सेकेंड आर इज़ आर फॉर रीजनिंग। और फिर कुछ ना कुछ कारण देके हम अपने आप को ग्रेट ही सोचते हैं, मतलब हमें कोई गिल्टी फीलिंग भी नहीं है। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर साधना रिड्यूस हो भी जाती है, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ठीक हो, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि या आई थिंक मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, मतलब अपने आप को तर्क दे के जस्टिफाई करने के बदले अगर हम ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा आजकल लेज़ी हो गई हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो रेड लाइट से फिर ऑरेंज, फिर धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा लाइफ में। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और अपना एटीट्यूड ऐसा ही रखते हैं कि आई एम ओके, आई एम फाइन, तो फिर क्या होता है, रेड लाइट के बाद में क्या होगा, एक्सीडेंट। फिर हमारा तीसरा आर आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, रिचुअलिस्टिक। फिर हम क्या करते हैं, अगर माला कर भी लेते हैं तो बस ऐसे यांत्रिक भाव से कर लेते हैं, करना है मतलब करना है, चलो कर लो, ख़त्म करो। इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, आनंद नहीं है, भक्ति पूरी ड्राई हो गई है, कोई चीज़ की इच्छा नहीं है, करना है तो करना पड़ रहा है तो कर लिया। तो पहले आर से क्या हो गया, रिड्यूस साधना, फिर आर से हो गया रीजनिंग। रिड्यूस साधना के बारे में कोई गिल्टी फीलिंग भी नहीं है, हम सोचते हैं हम महान है। उसके बाद हो जाता है आर फॉर रिचुअलिस्टिक, सब चीज़ यांत्रिक भाव से करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में आता है द मोस्ट डेंजरस आर फॉर, क्या होता है, हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। अब बिल्कुल भक्ति करना अच्छा नहीं लगता, अब तो बंद भी कर दिया, अब तो सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं कि हाँ मेरा हो गया, आज का माला हो गया, लेकिन अब पूरा बंद हो गया। तो ये चार जो ये हमारे स्टेजेस है, ये 1 by 1 आते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ ये सारा प्रॉब्लम, जब हमने साधना कम कर दी, जब हम साधना सिंसियरली नहीं करते। साधना करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे उनको एक हिरण ने उनका पूरा टाइम टेबल उल्टा कर दिया। ऑफकोर्स हमारे जीवन में तो ऐसे बहुत सारे हिरन हैं, उनके जीवन में तो सिर्फ एक ही हिरन था, लेकिन हमारे जीवन में तो बहुत सारे हिरन हैं। सबसे बड़ा हिरन तो सेल फोन है, और सेल फोन हमारे साथ ही है, सब समय हमारे साथ है। और अगर हमारे जीवन में कोई नहीं है जो हमें मदद करे, जिस तरह से भरत महाराज वे अकेले थे और वहाँ पे कोई उनको कहने वाला नहीं था कि अरे आप क्या कर रहे हो हिरन के पीछे, आज आपने अपना यज्ञ नहीं किया है या आपने भगवान की पूजा नहीं की है। तो ये है प्रॉब्लम। साधना, रिड्यूस्ड साधना इज़ अ सिम्टम ऑफ स्लिपिंग। मतलब अभी हम गिरे नहीं हैं लेकिन स्लिप हो रहा है, तो जैसे ही हम स्लिप होता है हमें मदद लेनी चाहिए, किसी की हाथ पकड़ के फिर सीधा खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो बस अब नेक्स्ट गिरना ही है, बाकी है। तो इवन श्रील प्रभुपाद भी इसीलिए तो साधना के बारे में कितना क्या कहते हैं, कितना एम्फसाइज इज़ राइट वर्ड, कितना एम्फसाइज करते थे कि जो भी हो आप ऐसा नहीं कि हम लोग सब हमेशा
परफेक्ट रह पाएंगे, कुछ ना कुछ गलती तो सब करेंगे, बट द होल पॉइंट इज़ भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। जैसे हाथ पकड़ के रखना है, जब हाथ पकड़ के रखते कभी कभी होगा डिस्ट्रैक्शन, कभी कभी होगा कोई ऑल्टरनेट अट्रैक्शन, कभी कभी होगा शायद कुछ और चीज़ हमें आकर्षित कर रही है, लेकिन अगर यहाँ हाथ नहीं छोड़ा है ना तो हम सेफ़ है। हाथ छोड़ेंगे तो गुम जाएंगे मार्केट में, हाथ पकड़ के रखना है। और अगर हम नहीं भी छोड़ पाते जो हमें दूसरी चीज़ जो डिस्ट्रैक्ट करनी है, कम से कम कृष्ण को साथ में लेकर चलना है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे थे अपने क्लास में कि जब वे छोटे थे तो उनको जब बाथरूम लगती थी तो वो अपनी मम्मी की साड़ी खींचते थे, कहते थे मम्मी बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है। तो उनकी माता हंसती थी कि मुझे क्यों परमिशन ले रहे हो, मेरी साड़ी क्यों पकड़ रहे हो, जाओ बाथरूम जाके आ जाओ। तो प्रभुपाद कहते थे कि मैं जब छोटा था तो बाथरूम जाने के लिए भी मेरी मम्मी से परमिशन लेता था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा अगर जैसे वो एक क्लास में कहते हैं 1973 के क्लास में अक्टूबर में मुंबई में ये क्लास में वे कहते हैं कि हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ देना कष्ट है भक्तों के लिए, लेकिन कम से कम अगर आप उसमें इंडल्ज होंगे तो भगवान से परमिशन लेके करो। फॉर एग्जांपल जैसे आज कुछ खाने का दिल किया, या जैसे हम ओवर इंडल्जेंस कर रहे हैं खाने में या प्रसाद लेने में या जो भी है, या कम से कम जैसे भक्तों का क्या होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, माने जैसे कभी क्रिकेट देखने का दिल किया या ऐसा कुछ किया, तो जो भी है कम से कम अगर नहीं छोड़ पाते हो पूरा तो भगवान से परमिशन लो। देखो ठाकुर जी, मेरी इच्छा तो है कि इसे नहीं करूँ, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तुम परमिशन दे दो। तो भगवान से ही रक्षा मांगनी है। जब हमें पता चल रहा है कि यस मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, मैं अपने आप को कंट्रोल, अपने आप की इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो भगवान से ही रक्षा मांगनी है। किसी भी हालत में भगवान को नहीं छोड़ना है। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल हिज ग्रेस आत्म तत्व प्रभु और उनकी पत्नी मालिनी माता जी हमारे घर आए थे, हमारे साथ वे कुछ दिनों के लिए रुके थे। और जब प्रसाद जो है, उनकी पत्नी बहुत सुंदर कुक है, मतलब बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है। तो मुझे याद नहीं, अब तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे मामा जी के घर उनको प्रसाद लेने के लिए हम लेके गए थे। तो आई थिंक मालिनी माता जी ने पास्ता या नूडल्स बनाया था, अब मुझे खास याद नहीं है। तो नूडल्स जब बनाया तो सब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, सबके प्लेट में प्रसाद दे दिया है। मैं क्लास 7 में थी, 7th या क्लास 8 में थी। हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं खाते, हम लोग पुष्टि मार्ग बचपन से फॉलो करते, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हमारी जो है पूजा वगैरह होती है, तो कभी बचपन से जैसे हमने टेस्ट भी नहीं किया प्याज लहसुन। और मेरी मदर क्या करती, जैसे सॉस वगैरह नूडल्स में डालना है या पास्ता में डालना है तो घर में उस सॉस को बना के फ्रीजर में रख देते हैं। लेकिन मेरे मामा जी के घर में ऐसा नहीं है। वे उनके घर में जो बाहर की जो मैगी सॉस की बॉटल होती है जिसमें लहसुन वगैरह होता है, वे तो यूज़ करते हैं। तो उस पर्टिकुलर दिन में जब नूडल्स टेबल पे था तो मेरी इच्छा की कि नूडल्स को बिना सॉस के कैसे खाएंगे, थोड़ा सा सॉस डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने मेरी मम्मी की तरफ इशारा किया कि मुझे थोड़ा सा इसमें सॉस चाहिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे आंखों में ही इशारा कर दिया कि नहीं, क्योंकि पता है उनको कि उनके घर में जैसे उन दिनों में नो ऑनियन नो गार्लिक सॉस की बॉटल आती नहीं थी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि तुम मत लेना क्योंकि उसमें लहसुन है। अब मेरी इच्छा देखिए, मेरी इतनी इच्छा कर रही है कि सॉस डाल के खाओ कि उस मोमेंट में मुझे लग रहा है कि एक दिन अगर खा लिया लहसुन वाला सॉस तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन बिना सॉस के नूडल्स खाना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं मम्मी के बोलने के बावजूद भी मैंने डाइनिंग टेबल से प्लेट उठाई, मैं गई, फ्रिज खोला, मेरी मम्मी दूर से देख रही है, मतलब मुझे थ्रेटन भी कर रही है कि तुम ये जो कर रही हो मैं आत्मतत्व प्रभु को बता दूँ तुम क्या कर रही हो, क्योंकि वो उसको समझ में आ रहा है मैं बॉटल के पास जाऊंगी और मैं वहाँ सॉस डाल, क्योंकि प्रभु जी के सामने तो सॉस बॉटल ला नहीं सकते, प्रभु जी देखेंगे टेबल के ऊपर में। मैंने सोचा वहाँ फ्रिज के पास में डाल के आ जाऊँगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। पर एक चीज़ मैंने अच्छा किया, दिल कर रहा है सॉस चाहिए,
पता है गलत है, सॉस में लहसुन है। मैं ठाकुर जी को प्रे कर रही थी, कृष्णा आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा करते 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 फ्रिज के पास में गई, वहाँ से मम्मी देख रही है, मतलब एकदम गुस्से में देख रही है, लेकिन प्रभु जी तो नहीं देख रहे, उनका तो बैग दिख रहा है मुझे। मैं किचन में चली गई, मैंने फ्रिज खोला, ये पेट के ऊपर में बैलेंस करते हुए मैं ऐसा प्लेट पकड़ी हुई हूँ, एक हाथ से सॉस का बॉटल मैंने खोला, ढक्कन खोल दिया, कृष्णा 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 प्रे भी कर रही हूँ, बट कंट्रोल नहीं हो रहा है कि बिना नूडल्स, बिना सॉस के नूडल्स कैसे खा सकते। अब जैसे मैं डालूंगी सॉस को मेरे प्लेट पे, बॉटल हाथ से नीचे गिर गई धड़ाम करके। अब एकदम प्रभु जी भी उठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं हुआ। चुपचाप से हाथ धो के आके बैठ गई मैं। मम्मी भी डांट लगाई बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तब तो बहुत छोटी थी मैं, क्लास 7 में, लेकिन अभी भी जब मैं उस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि कृष्ण सेव्ड मी। मतलब मुझे पता है एक्चुअली मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। उस मोमेंट पे लग रहा था कि थोड़ा सा खा लेते तो क्या हो जाता है। तो देयर मे बी सिचुएशंस इन आवर लाइफ जहाँ पे हमसे नहीं होता है कंट्रोल। हमें समझ में भी आता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, मुझे आज का ये राउंड नहीं मिस करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे भागवतम क्लास छोड़ के मुझे क्रिकेट नहीं देखना चाहिए। ऐसा बहुत बार सिचुएशंस आती है लाइफ में जहाँ पे हमें समझ में आता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता। तो उस टाइम पे भगवान की मदद लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, कृष्णा प्रे करना चाहिए, कृष्णा प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद इससे कहते हैं कि टेक परमिशन ऑफ कृष्णा, कृष्ण से परमिशन लो, देन कृष्ण विल प्रोटेक्ट यू। तो हमारी साधना कम नहीं करनी चाहिए। हमारी जो ये रेगुलर साधना है, कभी अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, ये हमारा कवच है। ये जब हम चांटिंग ठीक से करते हैं, जब हम रीडिंग ठीक से करते हैं, इट हेल्प्स अस। इनफैक्ट हमारा जो मन है ना वो कैसा है, कभी कभी जैसे हम कहीं जाते हैं ना वृंदावन, या आपने देखा होगा वृंदावन में छोटी छोटी बच्चियाँ, स्पेशली हम लोग कहाँ गए थे, कामयावन गए थे, कहाँ गए थे, मतलब इतना ज़्यादा इंसिस्ट करती है। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मे बी 5-6 साल के, 4 साल के, दे दो दे दो दे दो ना 1 रुपया, दे दो ना 1 रुपया, दे दो ना 1 रुपया, दे दो, इतना करेंगे कंटिन्यूसली। मतलब आपको लगेगा बस ठीक है बाबा ले लो, कम से कम इतना तंग मत करो, साड़ी खींचेंगे, ये खींचेंगे। आप भक्तों से कुछ बात करना चाहते तो भी आप कर नहीं सकते, उतना तंग करते हैं। फाइनली आप जब दे दोगे तो और बच्चे आते हैं, फिर उनको दे दो, फिर चले जाते हैं वहाँ से। उसी तरह से हमारा माइंड भी ऐसा ही है, गलत इच्छाओं के लिए दे दो ना दे दो ना दे दो ना दे दो ना दे दो ना, सब भिखारी के जैसे तंग करते ही रहेंगे जब तक कि आप दोगे नहीं। तो अगर आपको उससे मुक्त होना है, ये जो दे दो दे दो दे दो चांटिंग करना है, जब हम चांटिंग करते हैं, अच्छी तरह से जब करते हैं, तब ये जो दे दो ये माइंड जो है वो शांत हो जाता है। क्योंकि चांटिंग करते हैं तो सत्व गुण में आ जाते हैं, और सत्व गुण में हमें मन इतना तकलीफ़ नहीं देता। और जब तक हमारा मन सत्व गुण में नहीं आएगा, शांत नहीं होगा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, सेवा नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। शांत मन चाहिए, शांत मन से ही कुछ भी करना हो तो शांत मन चाहिए। भौतिक जगत में भी ये जो नेवी के ऑफिसर्स होते हैं, जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो क्या करते हैं, उनको ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, आँख पे पट्टी बांध देते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, और पानी की टंकी होती है ना उसमें उनको फेंक देते हैं। ज़्यादा डीप नहीं होता है, 9 फीट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डूब जाएंगे, लेकिन हाँ पानी के अंदर तो चले जाएंगे। 9 फीट भी काफ़ी बड़ा होता है। अब क्या होता है, कुछ जब ये ट्रेनिंग होती है, आप इमेजिन करिए आँख बंद है, हाथ पैर बांधे हुए हैं, आपको पानी के अंदर फेंक दिया है, क्या होगा? एकदम मतलब ऐसे हाँ व्याकुल होंगे तो क्या होगा, और भी जो है मतलब वो अंदर ही नीचे ही रहेंगे, और मतलब ये हो जाएंगे, ड्राउन हो जाएंगे, या अपने ट्रेनिंग में फेल हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको जब ऐसे पानी में डाल दिया जाता है, पहले शांत रहते हैं, शांति से सोचते हैं अच्छा मैं पानी के अंदर हूँ, आंख बंद है, हाथ पैर बांधे हुए, ओके कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बेस को टच कर पा रहे हैं, अपने पैरों से जोर देंगे, जोर दे के जब उसको प्रेस करेंगे तो ऊपर उठेंगे पानी के ऊपर, और फिर पानी के ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा पैर मारेंगे, और फिर धीरे धीरे जब माइंड पीस है ना, धीरे धीरे जो पीछे अपने हाथ बांधे हुए हैं उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वो
इतना टाइटली बांधा हुआ भी नहीं है, बहुत लूजली बांधा है, वो निकाल सकते हैं और धीरे धीरे अपने आप को निकाल देंगे। तो जो उस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको कहते हैं हाँ यू कैन बी अ गुड ऑफिसर। उसका मतलब कोई भी सिचुएशन में आपको डालने से आप शांत मन से सोचोगे, और शांत मन से सोचोगे तो आपको सारी आइडिया आएगी क्या करने से ठीक रहेगा। सो शांत मन बहुत ज़रूरत है, वेदर भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, उसके लिए शांति चाहिए। और अशांति मन देती है, वातावरण अशांति नहीं देती है, लोग अशांत नहीं कर सकते, हमें परिस्थिति अशांत नहीं कर सकती है। अशांत तो केवल मन करता है, और इस मन को शांत करने के लिए जप करना है। तो साधना में कहीं त्रुटि होगी तभी जाके फॉल डाउन होता है। तो इसीलिए साधना में बहुत केयरफुल रहना है। जब कोई अपना चांटिंग परफेक्टली करता है तो क्या होता है, एक तो ये भौतिक इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। जैसे ध्रुव महाराज, उनको क्या हुआ, गए थे भौतिक इच्छा के साथ कि राजा बनूंगा संसार का, लेकिन जब अच्छे से तपस्या की, भगवान को याद किया, स्मरण किया, तो भौतिक इच्छा से मुक्त हो गए। जब भगवान ने बोला कि मांगो, तो क्या हम मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भौतिक इच्छा से मुक्त होते हैं जब हम जप करते हैं। दृढ़ निश्चय बढ़ता है। हरिदास ठाकुर, दृढ़ निश्चय। वेश्या आई थी 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन वे दृढ़ निश्चय से डटे रहे, बिल्कुल वेवर नहीं हुए। और जब हम जप करते हैं तो हमारी सोई हुई चेतना, सोया हुआ हमारा ये जो आत्मा है वो जागता है। हम देखते हैं अजामिल की वृत्तांत में, अजामिल की चेतना सो गई थी, वो भूल गया था उस वेश्या के प्रेम में, वे अपनी सारी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ खो चुका था। लेकिन फिर से जब भगवान का नाम लिया नारायण, तो फिर वो जाग उठा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद जब उसे सेकंड चांस मिला, फिर से दूसरा द्वितीय अवसर मिला, तो उसने भगवान की भक्ति की। तो चांटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई चांटिंग नहीं करता है तो क्या होता है, स्पिरिचुअली वीक हो जाता है। अपराध नाम, मतलब आप करते वीक चांटिंग, मतलब नाम तो कर रहा है लेकिन अपराध के साथ कर रहा है, और ये फिर एक साइकिल में फंस जाता है। क्योंकि चांटिंग ठीक, अच्छा चांटिंग विल गिव बर्थ टू मोर अच्छा चांटिंग। जब एक बार आप चांटिंग अच्छा करते हो तो फिर दूसरे बार भी यू विल गो इन ए साइक्लिक थिंग। बट अगर एक बार स्पिरिचुअली वीक हो जा रहे हो तो फिर आप एक अलग ही दिशा में चले जाते हो। तो अच्छा चांटिंग, अच्छा हियरिंग। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चांटिंग मतलब हियरिंग एंड चांटिंग, दिस आर लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जैसे एक खाना और पीना कितना ज़रूरी है एक फिज़िकल बॉडी के लिए, उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक वृद्धि के लिए उतना ज़रूरी है हियरिंग एंड चांटिंग। और दूसरा हमारी साधना में क्या होता है, श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़ना। श्रील प्रभुपाद की किताब, ये शास्त्र, ये सारे क्या है, हेडलाइट्स, गाड़ी की हेडलाइट्स होती है ना, गाड़ी की हेडलाइट्स ज़रूरी है। गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब गाड़ी की हेडलाइट चालू रहती है तो हमें पता चलता है कि आगे खड्डा है, सावधान, गाड़ी स्लो करो, आगे स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी स्लो करो। तो उस तरह से ये शास्त्र जो है, ये चक्षु है, ये हमें दिखाते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये करना ठीक नहीं है। तो उस तरह से जो है हमारी हियरिंग होनी चाहिए, चांटिंग होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए, और सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट। हमारी सेवा मतलब जो हमने सुना है वो नॉलेज है, लेकिन जब सेवा करते हैं तो रियलाइजेशन आता है। जब रियलाइजेशन आता है तो आनंद आता है। फिर जब आनंद का अनुभूति होती है तो और भी पक्का निश्चय हो जाता है कि हाँ, भक्ति जीवन काम करता है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और फिर और भी तपस्या करने का प्रोत्साहन मिलता है। और अगर और भी तपस्या हम करते हैं तो फाइनली हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये सारा सब कुछ एक इंटरकनेक्टेड है। कहीं कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमारी साधना कम नहीं करनी चाहिए। हमारी सिचुएशन ऐसी है जैसे कि एक आदमी की जो पहाड़ से नीचे गिर गया, तो एक वैली में गिर गया, और उस वैली में कुछ गिरजन लोग रहते थे। तो उस आदमी को पकड़ लिया
पकड़ के उसको माला पहना दिया, बोला अब तुम हमारे राजा हो। ये डर गया कि आप लोग कौन हैं, मुझे राजा क्यों बना रहे हैं। बोलता ये हमारा सिस्टम है। तो बोलते क्यों, आपके पास कोई राजा नहीं है। तो हाँ था पहले एक राजा, अब हर एक साल में नया राजा बनाते हैं। तो अच्छा पहले वाला राजा कहाँ गया। बोला जो भी राजा बनता है एक साल के लिए, उसे उस दूर में जो टापू दिखाई दे रहा है उस टापू में उसको वहाँ पे रख देते हैं आजीवन के लिए। तो फिर उसने पूछा क्या मुझे भी उस टापू में भेजा जाएगा। बोला हाँ, आपका भी जब एक साल ख़त्म होगा आपको भी हम उस टापू में भेज देंगे। सब एक एक साल के लिए राजा बनते हैं, लेकिन इस एक साल आप आनंद कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो, आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, हम सब आपके सेवक हैं, आपकी सेवा में है। लेकिन एग्जैक्टली एक साल के बाद आपको फेंक दिया जाएगा उस टापू पे। अब ये बहुत इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था। उसने क्या किया, ये एक साल जो उसके हाथ में था उसने सारा धन, सारा खाने की चीज़ें, अच्छे अच्छे वृक्ष पौधे, वहाँ पे जो जो फैसिलिटीज़ बनानी थी सब कुछ, एक महल बना दिया, सब कुछ बना दिया, वहाँ पे कुछ लोगों को भेज दिया, वहाँ पे एक छोटा सा नगर बना दिया। और फिर एक साल के बाद जब उसका टाइम ख़त्म हो गया, उसे उस टापू पे भेज दिया गया, वहाँ पे हर एक फैसिलिटी थी। तो इस भौतिक जगत में हमारी परिस्थिति भी कुछ ऐसी है। गोलोक वृंदावन से टपके हम यहाँ पे नीचे गिर गए। यहाँ पे ये गिरजन लोग, ये कलयुग के लोगों ने हमें पकड़ लिया। कोई बड़ी कंपनी का CEO कोई हमें कहता है हम मैनेजर है, आप ये है, आप हमारे फैमिली के हेड है, आप हमारे ग्रैंडफादर है, आप हमारे फादर है। ऐसा हमें कितने लोग प्रेज़ करते हैं, प्यार देते हैं, माला पहनाते हैं। लेकिन अंत में ये एक साल ख़त्म होने के बाद में हमें फेंक दिया जाएगा। तो उसके पहले जिस तरह से इस राजा ने कितनी समझदारी से पूरा टापू में अपना फैसिलिटीज़ बना दिया, उसी तरह से जब हमें ये शरीर मिलता है तो आने वाली जीवन के लिए, आने वाले जन्म के लिए हमें अभी से सारी फैसिलिटीज़ रेडी कर देनी है। अच्छा जप करेंगे, अच्छी साधना करेंगे, अगर गोलोक वृंदावन नहीं भी जा पाए तो भी कम से कम सुचिनाम श्रीमताम गे है, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, जो पैसे वाले हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, ब्राह्मण क्वालिटीज़ है, अच्छा शरीर मिलेगा, सुंदर, बुद्धिमान, जहाँ पे हम भक्ति करने का फिर से हमें अवसर मिलेगा। तो कम से कम ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमें कभी भी हमारी साधना जो है रिड्यूस नहीं करनी चाहिए। हम जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, ये जो किसी भी सिचुएशन में जो है हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हर चीज़ को थर्ड एम्पायर की दृष्टि से, मदद से देखनी चाहिए। आप देखिए क्रिकेट में कभी कभी जो प्लेयर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपील करते हैं, आउट आउट आउट, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं 4-5 प्लेयर्स मिलके एक साथ में। लेकिन आप देखिए ये अंपायर जो होता है बहुत स्मार्ट होता है। आप कितना भी चिल्लाओ, वो जो सही डिसीजन है वो वही बोलेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि अरे 10 जने चिल्ला रहे हैं, ठीक है आउट, नहीं, वो जो देखा, और अगर उसे नहीं देखा है तो थर्ड एम्पायर की मदद लेते हैं। अच्छा आप दिखाइए स्क्रीन पे, ये लगा है कि नहीं, आउट है कि नहीं, विकेट गया है कि नहीं। उसी तरह से हमारे जीवन का थर्ड एम्पायर है शास्त्र, हमारे जीवन का थर्ड एम्पायर है गुरु। क्योंकि कभी कभी हम क्या होता है, जब बहुत सारी अपील आती है, अपील माने हमारी माइंड, हमारी सेंसेस, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये खाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। स्टॉप, नहीं, पहले थर्ड एम्पायर शास्त्र क्या कहता है, गुरु क्या कहता है, पहले उसको स्क्रीन में देखना है। फिर हमें या आउट है या इन है या जो है या 4 है या 6 रन बने हैं, डिसीजन देना है। तो ये है R फॉर रिड्यूस्ड साधना, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये हो भी गया है तो कम से कम उसके लिए बहाने नहीं मारने चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। हाँ, नहीं हो रहा है, आजकल कम हुई है साधना, कोई हिरन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे सीता माता को भी एक हिरन ने डिस्टर्ब कर दिया। हिरन के प्रेम में हिरन अच्छा लगा, भगवान राम को भेज दिया हिरन के पीछे, तो रावण ने उनको किडनैप कर लिया। दशरथ महाराज भी हिरन के पीछे, उनको लगा कोई हिरन पानी पी रहा है तो उन्हें बाण मार दिया। बाण मारा तो पता चला कि श्रवण कुमार मर गया। तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने दशरथ महाराज को श्राप दिया कि तुम्हें अपने पुत्र का विरह सहन करना पड़ेगा। तो वो भी राम जी से दूर हो गए हिरन के वजह से, सीता माता दूर हो गई हिरन के वजह से, भरत महाराज दूर हो गए
हिरन के वजह से। और हमारे जीवन में भी हिरन है। हिरन को इंग्लिश में कहते हैं डियर। इसलिए हमें भी बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारे जीवन का डियर कौन है, जो हमें बहुत डियर है, बहुत प्यारा लगता है। क्या वो हमारा सेल फोन है, या वो हमारे पति है, या हमारे पत्नी है, या हमारे बच्चे हैं, या कोई भौतिक इच्छा है, या हमारे बिजनेस है, या हमारी प्रॉपर्टीज़ है? क्या है हमारा? कौन है मेरा हिरन जो मुझे भगवान से दूर कर रहा है? तो रेड्यूस नहीं करनी है साधना, और अगर रेड्यूस साधना हो भी गई तो एटीट्यूड ठीक रखना है, अपने आप को महान नहीं सोचना है। हमेशा ये बात याद रखनी है भगवान की, मम माया दुरत्तया, मैं एक ऑर्डिनरी डिवोटी हूँ, माया बहुत बलवान है, ठाकुर जी मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे उतना रूल्स फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर पाऊँगा। नहीं, सारे जो नियम है वो सारे पालन करने हैं और मदद मांगनी है। जस्टिफिकेशन नहीं देना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट रहना है। अलर्ट रहना माने सतर्क रहना है। आज सुबह ही हम नित्यम भागवत सेवया में, हमारे यहाँ वाइजाग में एक प्रोग्राम है नित्यम भागवत सेवया। जब से कोविड शुरू हुआ हम लोग मॉर्निंग 6 से लेके 7-10 एवरी सिंगल डे जूम में साथ में भागवतम के श्लोक पढ़ते हैं। अभी हमारा 3rd कैंटो चल रहा है। तो एक भक्त यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि माता जी ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन माता जी अभी भी ना ईगो कम नहीं हो रहा है, माता जी अभी भी ना ये कम नहीं हो रहा है। तो बस मैं उसको बता रही थी कि ये जो एटीट्यूड है ना, जहाँ पे तुम मानते हो कि ये कम नहीं हो रहा है, भाई दैट्स इट, यही है हमारा सक्सेस। क्योंकि एक दिन सब कुछ कम हो जाएगा, हम परफेक्ट हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो हम एटीट्यूड रखते हैं कि हाँ मैं नहीं हूँ परफेक्ट, दैट विल अट्रैक्ट कृष्णाज मर्सी, कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अलर्ट हूँ। हमें अलर्ट रहना है। अभी हमने बात की 4 चीज़ों की, 4 R की। रिड्यूसिंग साधना, उसके ऊपर में रीजनिंग करना, फिर रिचुअलिस्टिक हो जाना, और उसके बाद में रेस्टलेस हो जाना। लेकिन अब हम बात करेंगे 3 A की। 3 चीज़ जो करने से हम बच सकते हैं। उस 3 A में है सबसे पहला अलर्ट, सब समय जागरूक रहना, अपने आप को जानना। श्रील प्रभुपाद जी ने तमिल कृष्ण महाराज से कहा था, फर्स्ट बी कॉन्शियस देन बी कृष्णा कॉन्शियस। पहले कॉन्शियस तो हो अपने आप के बारे में, तुम्हारे शरीर के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में क्या हो रहा है। कभी कभी हम इतने केयरलेस हो जाते हैं। तो हमें अलर्ट होना है। मेरे विचार कैसे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मन में क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों में अलर्ट होना है। दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, एसोसिएशन। ये 3 A क्या है, अलर्ट रहना है, भक्तों का एसोसिएशन लेना है, और सही एस्पिरेशन माने सही लालसा, सही इच्छा रखना है। ये 3 चीज़ हमें भक्ति में आगे ले जा सकती है। इस अलर्टनेस के बारे में बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद चैप्टर 4 वर्स नंबर 4 1.4.4 श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी का जो वृत्तांत है ना, जहाँ पे वो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते, वे व्यासदेव की पत्नी बिटिका के गर्भ में 16 साल से है और वो बाहर नहीं आ रहे हैं। और व्यासदेव उनसे कह रहे हैं कि बाबा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। कहते नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे माया अटैक करेगी। व्यासदेव कहते मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें माया नहीं करेगी अटैक, तुम आ जाओ। और कितना साल रहोगे, हम निराश हो जा रहे हैं तुम अगर ऐसा करोगे तो। कहता है कि आप जब निराश हो रहे हो तो मैं आपका विश्वास कैसे करूं। निराशा, आशा, ये जो आपका ड्यूअलिटी भाव है, उसका मतलब मैं आपकी गारंटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसने माया की सृष्टि की है उसको बुलाओ। वो मुझे अगर एक बार कह दे कि माया मुझे अटैक नहीं करेगी, तभी जाके मैं बाहर आऊँगा। तो फिर व्यासदेव जाते हैं द्वारका, भगवान कृष्ण को बुलाते हैं। फिर भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि अरे बाबा बाहर आओ, मैं वादा करता हूँ माया तुमको अटैक नहीं करेगी, तब वो बाहर आते हैं। तो परपुट में श्रील प्रभुपाद एक लाइन कहते हैं, जिसमें इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, सुखदेव गोस्वामी वॉज ए लिबरेटेड सोल एंड दस ही ऑलवेज रिमेन अलर्ट नॉट टू बी ट्रैप्ड बाय माया।
ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, सुखदेव गोस्वामी एक मुक्त जीव थे, इसीलिए वे हमेशा माया से सतर्क रहते थे। अब यूजुअली हमारा थिंकिंग ऐसा होता है, हम प्रारंभिक भक्त हैं, साधक है, हमें माया से अलर्ट रहना है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे जो मुक्त जीव है वो भी माया से अलर्ट रह रहे हैं। उसका मतलब माया से अलर्ट सबको रहना है, साधक भक्त हो, प्योर डिवोटी हो, 35 इयर्स हो इस्कॉन में या बचपन से भक्त हो, अलर्ट तो सबको रहना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव भगवान हैं, उनके पुत्र भी वो मुक्त जीव होने के बावजूद भी माया से डरते हैं, तो फिर हमें तो और भी डरना चाहिए माया से। हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए, माया से हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। एक सैनिक होता है ना, जब सैनिक लोग जो युद्ध में जाते हैं उनको ज्ञान दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है ये देखो इसको बंदूक कहते हैं, ये अलग अलग टाइप की बंदूकें होती है, इसमें इतनी गोलियां होती है, इसका ये होता है नाम, ज्ञान देते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दिया जाती है, बंदूक को ऐसा पकड़ना है, इसको ऐसा चलाना है, ज्ञान दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट है उन्हें सतर्क रहना है। अगर वो सतर्क नहीं है तो दुश्मन उन्हें मार देंगे। अगर वो कहते मेरे पास ज्ञान है, मुझे पता है इस बंदूक का नाम क्या है, इसका दाम कितना है, इसमें कितने गोली है, मुझे पता है इसको कैसे चलाते हैं, लेकिन जब दुश्मन आया तब मैं सो रही हूँ, तो दुश्मन तो मार के चला जाएगा। उसका मतलब केवल ज्ञान और केवल ट्रेनिंग से नहीं होगा, अलर्ट भी रहना पड़ेगा। उसका मतलब अगर हम कहते हैं कि मैंने इस्कॉन में IDC कोर्स अटेंड कर दिया है, भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री और सर्वभौमा, मेरा सब कुछ हो गया, मतलब ज्ञान ले लिया मैंने, पूरे सेमिनार्स वर्कशॉप सब कुछ मैंने अटेंड कर लिया, लेकिन अगर मैं अलर्ट नहीं हूँ, जो मेरे दुश्मन है ये काम क्रोध मोह मद मत्सर, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन माया, अगर मैं अलर्ट नहीं रहूँगी तो इंस्पाइट ऑफ माई नॉलेज है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, फिर भी मार के चले जाएंगे, मेरी भक्ति को ख़त्म कर सकते हैं। तो अलर्टनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। भक्तों को सब समय अलर्ट रहना है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हमें जैसे एक इंग्लिश में लाइन है, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एंड कॉशियस ऑफ माया। माया से डरो, कॉशियस रहो, सतर्क रहो, एंड कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, और भगवान के बारे में भगवान को स्मरण में रखो, भगवान को अपनी चेतना में रखो। ये दो चीज़ साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। केवल कॉन्शियस ऑफ माया लेकिन कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो भी काम का नहीं है, और केवल कृष्णा कॉन्शियस लेकिन माया से डरते नहीं है तो भी हमारा पतन हो सकता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब आप कहेंगे वन सेकेंड, ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया। अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है, आपने तो कहा कि कृष्ण का शरणागति लेंगे तो कृष्ण से मदद मांगेंगे, तो अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है तो फिर माया से डरने की क्या ज़रूरत है, भगवान ही तो देख लेंगे। नहीं, फिर भी नाउ कम्स आवर सेकेंड ए, कभी कभी इवन इफ कृष्णा इज़ विथ अस, फिर भी चांसेस है माया में गिरना। प्रूफ चैतन्य चरितामृतम, काला कृष्णदास का क्या हुआ, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी, चैतन्य महाप्रभु के साथ में ट्रैवलिंग सेक्रेटरी, सब जगह उनके साथ घूम रहे थे, फिर भी वो भट्टाहारी नारियों को देख के उनका पतन हो गया, वे उनके साथ चले गए। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको शिखा पकड़ के खींच के लेके आए कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वो भट्टाहारी जो नारी वो के साथ में वो जो चले गए थे काला कृष्णदास, उनको चैतन्य महाप्रभु लेके आ गए। तो अरे बाबा, भगवान के साथ थे वो, फिर भी तो गए ना, माया में डिस्ट्रैक्ट हुए ना। तो अब तो ये लेक्चर का फिर एंडिंग क्या है, क्योंकि अभी तक तो आप कह रहे थे कि भगवान साधना मत रिड्यूस करो, भगवान के शरणागति लोग, लेकिन अब तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी आ गया कि भगवान के साथ रहने वाले का भी पतन होता है। तो देयर कम्स आवर सेकेंड ए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भगवान के साथ साथ में और एक भी साथ रखना है, वो है भक्तों का संग। क्यों? इसी घटना को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इस पे बात करेंगे। जब ये काला कृष्णदास ये काम करता है, ठाकुर जी गुस्सा होते हैं, उसको शिखा पकड़ के लेके आते हैं। जब वापस बैक टू पुरी जाते हैं, तब भगवान काला कृष्णदास को ये भक्तों को सौंप के कहते हैं कि इसको नमस्कार,
अब मैं इसको मेरे साथ कहीं नहीं ले जाता हूँ, आई रिजेक्ट हिम, मैं इसका त्याग करता हूँ। इतना बदमाशी की उसने, मुझे छोड़ के चला गया वो भट्टाहारी नारियों के पीछे। तब क्या किया, दामोदर पंडित, मुकुंद दत्त, जगदानंद, नित्यानंद प्रभु सब ने मीटिंग बुलाई। क्या करे इसका, अभी चैतन्य महाप्रभु ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया बेचारा, अब इसका क्या करे। तो अब मीटिंग करने के बाद वे चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने कहा, महाप्रभु हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में दक्षिण भारत यात्रा में था, तो वहाँ पे सची माता और नवद्वीप में जितने भी आपके जो भक्त हैं वे काफ़ी उत्सुक है जानने के लिए कि आपकी यात्रा कैसी रही, क्या हुआ। तो क्या हम इसे वहाँ भेज सकते हैं सची माता के पास? वो सारे आपकी यात्रा की खबर वहाँ सब भक्तों को देगा और भक्त सब आनंदित हो जाएंगे। तो हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम उन्हें वहाँ भेजेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो करना है करो, जो करना है करो। तो फिर उन्हें वहाँ नवद्वीप भेजा जाता है। और जब वो नवद्वीप पहुँचते हैं काला कृष्णदास, तो अद्वैत आचार्य और सारे भक्त इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ में संग किया वो आए हैं। तो 3 दिन का बड़ा फेस्टिवल आयोजित करते हैं। उस फेस्टिवल में मतलब सब कथा सुनना चाह रहे, अच्छा फिर उसके बाद आप कहाँ गए थे, उसके बाद आप कहाँ गए थे, वहाँ पे ऐसा हुआ, ओ उसके बाद क्या हुआ। अब 3 डेज़ का क्या कहते हैं ना, श्रवण फेस्टिवल, और सब सुन रहे हैं। तो आप इमेजिन somebody who is fallen in Maya, rejected by Lord but protected by devotee, गिर गए, माया में पतन हो गया, भगवान ने भी त्याग दिया, भक्तों ने बचा लिया। अब क्या हो गया, ही गॉट एंगेज इन कृष्णा सर्विस। नवद्वीप में सारे भक्तों का संग मिल रहा है और भक्तों को कथा सुनने की सेवा मिल रही, इतना बड़ा फेस्टिवल आयोजन करने की सेवा मिल गई काला कृष्णदास को। क्यों? भक्तों के वजह से। तो ये है भगवान के भक्त कितने दयालु है। तो हमारे 2 ए क्या थे, एक तो हमें अलर्ट रहना है और दूसरा एसोसिएशन, भक्तों के एसोसिएशन में रहना है। केवल भक्त ही हमें बचा सकते हैं माया से भी। भगवान से भी ज़्यादा भक्त दयालु होते हैं। तो हमें लेना है भक्तों का एसोसिएशन। अभी एसोसिएशन की भी एक परिभाषा है, एक 15 मिनट में ख़त्म करूँगी। ये एसोसिएशन की भी एक परिभाषा है। एसोसिएशन माने केवल ये नहीं है कि मैं जाता हूँ संडे प्रोग्राम में और कथा सुना और प्रसाद लिया चला आया, ठीक है, दैट इज़ वन लेवल। बट एक्चुअल एसोसिएशन मतलब भक्तों से अपनी मन की बातें शेयर करना, उनसे बातें सुनना, उनको कुछ उपहार देना, उनसे उपहार लेना, उनको भोजन खिलाना, उनके हाथों से भोजन लेना, ये सारी चीज़ें करना है। ओपनिंग द हार्ट फॉर मर्सी, अपने हृदय की बातों को भक्तों के साथ शेयर करनी है। ये है एसोसिएशन का एक अंग। तभी कहा जाता है कि हाँ, आपने भक्तों का संग लिया। संग लेना मतलब अपनी मन की बातें बताना, क्योंकि ये मन जो है बहुत खतरनाक है। भक्ति विद्यापूर्ण महाराज कहते हैं, माइंड वर्क्स इन डिकेड्स। ये मन है ना, 1 दिन 2 दिन 1 साल नहीं, 10 साल 20 साल, सडनली 10 साल के बाद में हमारा माइंड चेंज हो सकता है। अभी तक हमसे कोऑपरेट ही कर रहा था, अच्छा से जब भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। सडनली आफ्टर 20 years इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, माइंड सडनली एक दिन पूछता है, क्या मिल रहा है ये सब करने में, क्या है? इतना तो किया भक्ति, फिर भी मेरे काका की चाचा की बेटी कोविड में मर गई, फिर भी इतना किया लेकिन मेरे बेटे को वीज़ा नहीं मिला, इतना किया लेकिन मेरी बेटी का जॉब चला गया, इतना किया लेकिन दामाद ऐसा मिला। क्या है भक्ति करने से, क्या फ़ायदा है, क्या हो रहा है? ये देखो, ये भक्त कितना भक्ति कर रहे थे लेकिन देखो अभी रिसेंटली उन्होंने दूसरी बार शादी कर ली। क्या है भक्ति में, सब ऐसा ही है। तो ये क्या होगा, माइंड सडनली आपका लगेज पैक करके आपको लेके चला जाएगा साथ में माया के अंदर और भक्तों का संग, और आपको लगेगा मैं कल तक तो ठीक था, आज ऐसे बेकार के विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि माइंड बहुत बदमाश है। माइंड वर्क्स इन डिकेड्स। आपको लगता है कि दोस्त है दोस्त है दोस्त है, लेकिन सडनली पीछे से कभी खंजर बो देता है, हमको पूरा डिस्टर्ब कर देता है माइंड, और हमें कृष्ण से दूर लेके चला जाता है। इसलिए ऐसे डेंजरस लोगों के साथ, जब ये डेंजरस माइंड के साथ हम जी रहे हैं ना, तो बेटर साथ में हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, मतलब भक्तों का एसोसिएशन होना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर ये दुश्मन खंजर पोकेगा तो आसपास में दोस्त है हमें बचाने के लिए, हमारे दूसरे भक्त हैं जो हमें बचाएंगे हमारे माइंड से। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा भक्तों के साथ
हमारे मन में जो चल रहा है ना उसे शेयर करना है, सब समय उनसे बात करनी, मेरे मन में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो क्या है, भक्त हमें हेल्प करेंगे माइंड को डायग्नोस करने में। स्पेशली वरिष्ठ भक्त जो होते हैं, दे कैन एग्जैक्टली डायग्नोस द माइंड। ओ तुम्हारे माइंड में भी ये चल रहा है, नेक्स्ट तुम्हारा माइंड ये बोलेगा, करेक्टली हमें गाइड कर सकते हैं। तो एसोसिएशन मतलब हमारे माइंड को शेयर करना। एसोसिएशन मतलब अकाउंटेबिलिटी। एसोसिएशन मतलब हमें हमारी साधना कार्ड किसी से शेयर करनी चाहिए। कभी कभी जैसे अगर हम भक्ति में नए हैं और जूनियर है फिर तो बहुत सेफ़ है, क्योंकि कोई ना कोई हमारे शिक्षा गुरु, मेंटर, काउंसलर हमें हमारा साधना कार्ड चेक करते हैं तो हम सेफ़ है। प्रॉब्लम ये हो जाता है जब हम खुद ही भक्ति में वरिष्ठ हो जाते हैं, हमारा साधना कार्ड चेक करने वाला कोई नहीं होता है, तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम किसको बताएं कि हमारा आज चैंटिंग हुआ कि नहीं, कैसे हुआ। इसलिए जो जिस लेवल में है उस लेवल में कुछ दोस्त होने चाहिए। इवन अगर हमारे नीचे 200 भक्त को हम ट्रेन कर रहे हैं फिर भी हमारे ऊपर किसी से दोस्ती रखनी चाहिए जो हमारा साधना कार्ड चेक करे कि भाई कैसा चल रहा है, जब सब ठीक तो चल रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हमारा साधना कार्ड। इंद्र ने भगवान पे समन्ता का बादल भेज दिए थे क्योंकि इंद्र खुद बॉस थे। ये बॉस होना बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जब हम खुद बॉस होते हैं और हमारे ऊपर में कोई बॉस नहीं होता तो हम कभी भी गलत कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमें टोकने वाला कोई नहीं होता। इंद्र को टोकने वाला कोई नहीं था। तो फिर गोवर्धन लीला हो गई। मुझे याद आ रहा है भूरिजन प्रभु की किताब माई ग्लोरियस मास्टर में भूरिजन प्रभु कहते हैं कि वे श्रील प्रभुपाद को एयरपोर्ट पे लेने गए थे और श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा मॉर्निंग प्रोग्राम। तो भूरिजन प्रभु ने कहा एज ऑफ नाउ तो मॉर्निंग प्रोग्राम बंद है क्योंकि कोई बाहर के गेस्ट तो आते नहीं हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने गेस्ट के मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछा, मैं तुम्हारे मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हारा मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है। तो जब उन्होंने कहा कि उनका मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो रहा है तब प्रभुपाद ने पूछा कि आर यू इन इस्कॉन, तुम इस्कॉन में तो हो ना। वो शॉक हो गए कि कैसा पूछ रहे, हुज डिसाइपल यू आर, किसके शिष्य हो तुम। तो मतलब इतना ज़्यादा उनको डांट दिया, इतना ज़्यादा उन पे चिल्ला दिया। तो भूरिजन प्रभु अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे कि प्रभुपाद ने मेरे पे ओपन हार्ट सर्जरी कर दी बिना एनेस्थीसिया के। कम से कम एनेस्थीसिया दो तो आपको थोड़ा सा दर्द कम होता है। सबके सामने जो डांट लगा दी मुझे प्रभुपाद जी ने कि क्यों नहीं हो रहा है मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक से। और वे बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से कहते हैं कि प्रभुपाद जी का डांटना ना रोमांटिक है ना प्लेजरेबल है, इट्स वेरी पेनफुल। ना प्रभुपाद जी का डांटना मुझे आनंद देता है, ना प्रभुपाद जी का डांटना मुझे प्रेम से भरा हुआ लगता है। प्रभुपाद जी का डांटना मुझे दुख देता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही इंसान है जिसको खुश करने के लिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ जस्ट टू मेक हिम हैप्पी। ये मेरे सब पूरे जीवन में, मेरी दुनिया में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और वो मुझसे नाराज़ है तो फिर मैं और लाइफ में और मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं है। तो वो कहते कि इसीलिए प्रभुपाद जी जब डांटते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगता है, आनंद होता है, दर्द होता है दिल में कि हमने प्रभुपाद को दुख दिया। तो मैं सोच रही थी कि उन दिनों में भक्तों को उनके ऊपर में प्रभुपाद जी थे जिनको वो रिपोर्ट करते थे, ठीक है हमारी साधना ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं। उसी तरह से हर एक लेवल पे छोटे से लेके वरिष्ठ भक्तों तक सबका कोई होना चाहिए जिनको वे जवाब दे कि हाँ मेरा जप कैसे चल रहा है। इनफैक्ट हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज अपनी व्यास पूजा के दिन पूरा रिपोर्ट देते हैं। महावरा प्रभु जो उनके सेक्रेटरी है, उनके शिष्य पढ़ते हैं टोटली कितने जब राउंड्स कंप्लीट किए उन्होंने, ये पूरे 365 डेज़ में कितना चैंटिंग हुआ, क्या हुआ, पूरा रिपोर्ट पे पढ़ते हैं भक्तों को, कितने एक्स्ट्रा राउंड्स हुए, क्या क्या हुआ। दो उनकी हेल्थ इतनी ख़राब है तो दैट इज़ सो स्वीट। तो हमें किसी से, तो एसोसिएशन मतलब अकाउंटेबिलिटी, एसोसिएशन मतलब किसी को हमें बताना चाहिए कि हाँ मेरी साधना कैसी चल रही है। एसोसिएशन मतलब कंसल्टेशन, किसी को कुछ पूछना चाहिए क्या मैं ये करूँ, ये है एसोसिएशन। जब हम भक्तों से पूछते हैं, जैसे
रावण ने नहीं पूछा था विभीषण से जब उन्होंने सीता माता को किडनैप किया। हिरण्यकशिपु ने नहीं पूछा था जब उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। दक्ष ने नहीं पूछा था किसी से जब उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। इसलिए उनका जीवन में ये सिचुएशन आ गई। तो हमें रावण या हिरण्यकशिपु नहीं बनना है, हमें हर चीज़ कंसल्ट करनी है। भगवान राम भी हर चीज़ हनुमान से, सुग्रीव से, अंगद से भी कंसल्ट करते थे। तो एसोसिएशन माने भक्तों से कंसल्ट करना, हर चीज़ पूछना। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा प्लान बना रहा हूँ, आप क्या कहते हो? ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, ऐसा कोई भक्त हमारे जीवन में होना चाहिए। सबके जीवन में एक मेंटर या एक कोई भक्त होना चाहिए जिससे कोई भी बात शेयर करने में हमें झिझक ना हो। हम कुछ भी बता सकते हैं उनको, हमारी मन की स्थिति क्या है, पूरा खुला खुला, बिना कुछ हिचकिचाहट के। एसोसिएशन माने शेयर करना, हमारी रियलाइजेशन शेयर करना। हमने कोई अच्छे नोट्स बनाए हैं क्लास में तो उसको शेयर करना, हमने कोई अच्छी किताब पढ़ी है तो उसको शेयर करना, हमने कोई अच्छा श्लोक पढ़ा आज तो उसे शेयर करना। ये एसोसिएशन माने शेयर करना। एसोसिएशन माने एक दूसरे को एंकरेज करना। वाह, आज तो आपने बहुत सुंदर माला बनाई, ओ आज का क्लास तो बढ़िया था। और या तो आप जब करते आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया है, और आपने बहुत सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को एंकरेज करना, ये है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब विश्वास करना और दूसरों के विश्वास पात्र होना, ये एसोसिएशन है। हम दूसरों पे विश्वास करते हैं और दूसरे हम पे विश्वास करें, ऐसा हमारा हाव भाव है, ऐसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए। लेना देना, किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना। इवन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ एसोसिएशन करते थे। इवन माधवेंद्र पुरी, वे भी हमेशा अपने सन्यासी शिष्यों के साथ में घूमते थे। सड़क गोस्वामी, वे तो महान भक्त थे, फिर भी वृंदावन में साथ में रहते थे, एक दूसरे का संग करते थे। इनफैक्ट जड़ भरत, हमारे जो भरत महाराज आज के हमारे क्लास के जो हीरो है, वे जब जड़ भरत का शरीर पाते हैं तो महाराज रह गुण से वे कहते हैं कि अगर किसी ने भक्त के चरण की धूली अपने शरीर पे नहीं लगाई है तो वो नहीं बढ़ सकता है भक्ति में आगे, जब तक कि वो धूली नहीं लगाता। भक्त की धूली अपने सिर पे, अपने पूरे शरीर पे नहीं लगाता है। तो एसोसिएशन बहुत, इनफैक्ट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ कैन चेंज जस्ट अबाउट एनीबडी। एक लास्ट स्टोरी कह के मैं ख़त्म करूँगी, आई थिंक मैं ओवर टाइम हो गई हूँ, लेकिन ये कहानी मैंने जस्ट कल ही सुनी, कल नहीं परसों। मैं 2-3 दिन से हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद में हम एक जगह गए थे, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। रामानुजाचार्य का एक बहुत बड़ा 216 फीट स्टैच्यू बना हुआ है और रामानुज संप्रदाय के जो है उन्होंने ये बनाया है, बहुत ही सुंदर है हैदराबाद में। और उसकी एक खासियत ये है कि उस स्टैच्यू के आसपास 108 मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिरों को कहा जाता है 108 दिव्य देश। और ये जैसे हम गौड़ीय संप्रदाय में हमारे जैसे सड़क गोस्वामी है और हमारे सड़क गोस्वामी के मंदिर है ना, जैसे हम जब वृंदावन जाते तो हम सोचते सड़क गोस्वामी मंदिर तो जाना ही है, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन, हम जैसे कंपलसरी हम जाते हैं। उसी तरह से जो रामानुज संप्रदाय के हैं उनके जो सड़क गोस्वामी जैसे हमारे हैं, उनके हैं 12 अलवार, और उनके द्वारा जो मंदिर बने हुए हैं या उनके प्रतिष्ठित विग्रह है या जो विग्रह उनको आनंद देने के लिए आविर्भाव हुआ था, वो सारे जगहों को कहा जाता है दिव्य देश। और 108 मंदिर पूरे बने हुए हैं। और हम गए थे एयरपोर्ट से काफ़ी पास में, 15-20 मिनट का ही रास्ता है। इनफैक्ट भगवान की दया से क्लाइमेट भी इतनी सुंदर थी, छोटे छोटे बारिश की बूंद गिर रही थी और अच्छी हवा चल रही थी, और हमने 108 मंदिर के दर्शन किए। और सबसे अच्छा तो ये लगा, केवल दर्शन कर लेते तो इतना जो आनंद नहीं आता था जितना कथा सुनने में आया। वहाँ के जो इंचार्ज थे, जो स्वामी जी थे, वे हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे परिचित हैं और काफ़ी प्रवचन भी फॉलो करते हैं।
तो वे मुझे पर्सनली जो है मुझे और प्रभु जी को लेके गए और हर एक मंदिर के पास में वे रुकते और उस विग्रह की लीला बताते, यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और इसलिए भगवान ऐसे करके प्रकट हुए। तो इतना आनंद आया, 3.5-4 घंटे तक हम बस घूमते रहे और भगवान के अलग अलग श्रृंगार, कभी कहीं तो भगवान का मुकुट ऐसा है तो कभी इधर ऐसा है, कहीं वे 4 भुजाओं के साथ है तो कहीं अष्टभुजा के साथ है, कहीं तो बलि का लीला हो रहा है, वामन बलि का तो पैर ऊपर किया हुआ है, तो कहीं वे शेष नाग पे सोए हुए हैं रंगनाथ जी, तो कहीं आदिकेशव जी का मंदिर है जहाँ पे वो ब्रह्म संहिता चैतन्य महाप्रभु ने डिस्कवर की थी। और ऐसे अलग अलग दक्षिण भारत के अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से लेके तिरुपति के बालाजी से लेके हर एक द्वारका मंदिर, ऐसे जो सारे अलग अलग दिव्य देश है। तो वे एक सुंदर ये बता रहे थे, मुझे कथा बता रहे थे तिरुमंगई अलवार की। तो ये कथा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जैसे हमारे जो गोस्वामी है उनमें से उनके जो 12 अलवार है उसमें से ये अलवार है तिरुमंगई अलवार। अब तिरुमंगई अलवार जो है वे थोड़े से क्या कहते हैं क्षत्रिय भाव के हैं। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं कि हमारी ये जो सड़क गोस्वामी है वे मंजरी है, रूप गोस्वामी जो है वो वहाँ पे राधा रानी की गोपियों की सेवा करते हैं, यहाँ पे रूप गोस्वामी के रूप में आए हैं। उसी तरह से इनके जो अलवार है वो भी भगवान के अलग अलग शस्त्र है। तो यहाँ पे वो मतलब बहुत शूरवीर है सबसे, मतलब फाइटिंग वगैरह में। तो जो राजा है उनको एक छोटा सा जगह दे के वहाँ पे उनको उस जगह का राजा बना देते हैं। अब एक दिन ऐसा हो जाता है कि कोई अप्सरा को कपिल मुनि श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा का नाम था कुमुदावली। तो श्राप दिया है तो उसे कहा कि तुम्हें थोड़ा दिन भौतिक जगत में, मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड में, प्लैनेट अर्थ में रहना पड़ेगा आपको, और आपका श्राप जब ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने वापस इंद्रलोक आ सकती हो। तो अब ये कुमुदावली जो है वहाँ पे कोई वेद थे धनवंतरी, उनके पास जाके कहती है कि मुझे थोड़े दिन तक जो है आश्रय दीजिए। तो ये उनको अपनी बेटी के जैसे अपना लेते हैं। अब जब ये कुमुदावली तो अप्सरा थी तो बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, उसको देखने से सब मुग्ध हो जाते थे। तो ये जो हमारे तिरुमंगई अलवार है वो एक दिन सुनते हैं कि ये जो धनवंतरी की बेटी है बहुत सुंदर है। तो वो जाते हैं उसको किसी बहाने से देखने के लिए। जब किसी बहाने से उसे देख लेते हैं तो बहुत मुग्ध हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इससे शादी करूँगा। तो वो जाते हैं उसके पिताजी के पास कि मुझे आपकी बेटी कुमुदावली से शादी करनी है। तो उनके पिताजी उससे पूछते हैं बुला के कि ये तुमसे शादी करना चाहता है तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? तो वो कहते हैं कि हाँ मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी 2 शर्त है। ये क्या है 2 शर्त? बोला इनको कहिए कि ये वैष्णव तिलक धारण करे और रोज़ 1 साल तक 1000 वैष्णव को प्रसाद खिलाए। और वो भी कैसे प्रसाद खिलाना है? हर एक वैष्णव को बिठाना है, चरण धोना है, प्रसाद खिलाना है, और जब वे प्रसाद खाते हैं तो उन्हें पंखा करना है और उनसे बातें सुनना है। अगर वे 1 साल तक ऐसा करेंगे तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये तो राजा था तो बोला अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है डन, उतना ही मैं करूँगा। तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया। अब तक तो सारे वैष्णव उनसे डरते थे कि ये बहुत क्रूर राजा है, लेकिन अभी एक एक वैष्णव को पकड़ पकड़ के लेके आते, बैठो अब तुम्हारे पैर धोऊंगा। तो ये क्या मार तो नहीं देंगे? नहीं, मैं सिर्फ आपका पैर धोऊंगा। सबको पैर धो रहे हैं, सबको बिठा रहे पंक्ति में, अच्छा सा प्रसाद खिला रहे, उनका पंखा दे रहे हैं। और उनसे जो अब बातें सुनना, मतलब भगवान के भक्त क्या बात करेंगे? भक्ति भगवान के सिवाय तो उनको कुछ आता ही नहीं है, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ऐसा 1 साल तक 365 डेज में करते रहे। अब क्या होगा? पूरा हृदय पवित्र हो गया। लेकिन अब क्या हुआ? 1 साल के बाद अब वे बंद नहीं कर पा रहे उस सेवा को। अब उनका दिल ही नहीं लगता है कि नहीं मेरे को करना ही है, मैं कंटिन्यू करूँगा इस सर्विस को। लेकिन अब पूरा पैसा ख़त्म, कुछ भी पैसा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हो गए कि वे डेकॉइड बन गए, मतलब चोर बन गए। वो हाईवे पे जो है लोग जो चले जाते हैं उनसे पैसा चोरी करके वैष्णव को खिलाते रहते हैं। तो ऐसा वे कंटिन्यूसली करते थे। तो अब वो इतने फेमस हो गए कि वो चोरी करते हैं बोल के उस रास्ते में भी लोग आना जाना बंद कर दिए। तो अभी एक ही
थोड़ा सा एक सोने का मोहर उनके पास बचा हुआ था, लेकिन आज का वैष्णव भोजन कैसे करें, तो रो रहे थे कि मैं कैसे करूँगा आज वैष्णव को भोजन। तो ठाकुर जी खुद आते हैं लक्ष्मी देवी के साथ में, एक मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा एक वेश बना के बहुत सारे लोगों को लेके वहाँ पे ठाकुर जी आते हैं, बहुत सारे आभरण पहन के। अब ये बहुत खुश हो जाता है, अब वहाँ जाके मतलब उनको थ्रेटन करता है स्वॉर्ड दिखा के कि आपके पास में जितनी भी ज्वेलरी है सब निकालो निकालो निकालो। तो ठाकुर जी लक्ष्मी देवी जो है सब कुछ उसको दे रहे हैं, खुशी खुशी। वो तो चाहते हैं कि वैष्णव सेवा करे, सब कुछ लूट लेते हैं। लेकिन उसके बाद में भगवान के जो पैर है, पैर की जो अंगूठी है टो में, वो रह जाती है। तो ये तिरुमंगे अलवार कहते हैं कि वो निकालो, वो भी चाहिए मुझे। तो कहता है तुमने सब कुछ तो ले लिया, ये एक छोड़ दो। मतलब नहीं नहीं, ये भी काम में आएगी, वो 1000 पत्तल खरीदनी पड़ती है ना, उसमें काम लग जाएगी, दे दो। तो नहीं, ये निकल नहीं रही है, मैंने कोशिश किया। क्यों नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी तो मैं आपका पैर काट के निकालूंगा, निकालो इसको। तो बोला नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो तुम निकाल लो। तो उसने भी कोशिश किया तो निकल नहीं रही है। तो क्या कर रहे हो तुम, कुछ मंत्र बोल रहे हो क्या, क्या कर रहे हो? तो गुस्सा में वो सोचता है कि मैं अपने दांतों से बाइट कर दूंगा, बाइट करके निकालूंगा। तो अपने दांत ले जाता है भगवान के पैर के पास और उस अंगूठी को दांत से निकालने की कोशिश करता है। और जब उसकी जो जिह्वा है भगवान के श्री चरण को छूती है, बस एकदम पूरा जो है रोमांच हो जाता है, सारे सिम्टम्स आते कि क्या है ये, कौन है ये। फिर वो ऊपर उठ के पूछते कौन है आप, क्या मंत्र है ये, क्या कर रहे हो आप, क्या मंत्र बोल रहे हो कि ये निकल नहीं रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मंत्र है। और फिर उसके कान में भगवान जो है अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। और फिर जो है उसका मतलब एकदम ये हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और फिर वो मंत्र का उच्चारण करने लगता है और फिर भगवान नारायण के रूप में उसे दर्शन देते हैं। तो क्योंकि वैष्णवों का संग कर रहा था, वैष्णवों का एसोसिएशन ले रहा था, तो ठाकुर जी खुद ही आए, उसको अष्टाक्षरी मंत्र भी दिया और उसे इतना मर्सी दिया। तो अलर्ट, ए फॉर अलर्ट, ए फॉर भक्तों का एसोसिएशन, एंड द लास्ट ए फॉर एस्पिरेशन। सही लालसा बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अलर्ट भी है और भक्तों का एसोसिएशन भी है, लेकिन भगवान को पाने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो भी कुछ नहीं फर्क काम में नहीं आएगा। क्योंकि हम अलर्ट तो है, हम भक्तों के एसोसिएशन में तो है, लेकिन भगवत धाम जाने की कोई इच्छा नहीं है, तो भी नहीं होगा। इच्छा भी ज़रूरत है, लालसा, इच्छा भी। जो आप देखो चैतन्य चरितामृत में ये कथा आती है, कैसे ये ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला भगवान की भुजाओं पे चढ़ जाती है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथपुरी में जब ठाकुर जी खड़े थे गरुड़ स्तंभ के पास में, तो ये बुढ़िया चढ़ जाती है ठाकुर जी के शोल्डर्स के ऊपर में, भुजाओं के ऊपर में, और गरुड़ स्तंभ को पकड़ के जगन्नाथ जी का दर्शन करती है। और ठाकुर जी के जो पर्सनल सर्वेंट है गोविंद, वो डांटता है, ए बुढ़िया नीचे उतरो, नीचे उतरो, क्या कर रही हो तुम। और चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं गोविंद ठीक है, उसको दर्शन करने दो, मैं उसकी लालसा देखो, उसकी एक क्या कहते भगवान को देखने की उसकी तीव्र इच्छा देखो, मुझे कब होगा, मेरे हृदय में कब ऐसी इच्छा आएगी जगन्नाथ जी को देखने के लिए। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि अपराध हो रहा है, ठाकुर जी के ऊपर में पैर रखी हुई है, बट और दो अपराध भी कर रही है। यहाँ ठाकुर जी के ऊपर पैर रखी है और यहाँ पे गरुड़ स्तंभ जो भगवान के भक्त है, लेकिन जो भगवान को देखने की एक लालसा, उसका जो इंटेंशन है, दैट गेट्स द लॉर्ड्स अटेंशन। लॉर्ड भगवान कितने खुश हो जाते हैं। तो व्हाट्स द गोल ऑफ आवर लाइफ, हमें ये एस्पिरेशन है कि नहीं, हमें चेक करना चाहिए, ये लालसा है कि नहीं भगवत धाम जाने के लिए। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बहुत सुंदर स्टाइल में कहते थे क्लास में, द गोल ऑफ आवर लाइफ इज़ टू बिकम मैड। मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य है पागल होना। तो सबको क्या पागल होना? और फिर वो दूसरी लाइन में बोलते हैं, द गोल ऑफ आवर लाइफ इज़ टू बिकम मैड, मैड फॉर मैडन मोहन, मतलब मदन मोहन के लिए पागल होना, ये होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य। मतलब भगवान को प्रेम करना चाहिए और भगवान के लिए पागल हो जाना चाहिए। वो एस्पिरेशन, वो लालसा हमें होनी चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया कैसे 4 R से पतन हो सकता है और 3 A से हम बच सकते हैं। एक तो साधना रिड्यूस करना,
रिड्यूस करने के बाद में रीजनिंग देना कि कोई बात नहीं है, और फिर रिचुअलिस्टिक हो जाना, नाम मात्र कर लेना साधना को, और फिर रेस्टलेस बन जाना क्योंकि अब तो साधना में ठीक मतलब ड्राई हो चुकी है, कोई टेस्ट नहीं है, पतन हो जाना। और 3A हमें बचा सकता है, अलर्ट रहना कि क्या चल रहा है मेरे मन में, भाव में क्या कर रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, और सही एस्पिरेशन होना चाहिए। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो हम महाराज भरत के जीवन से सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज, एंड वेरी सॉरी फॉर going way beyond the time. Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. I pray from the core of my heart that the Lord blesses us all and protects us from Maya and guides us in the right direction. Hare Krishna. Wonderful question, और ये question तो आना ही चाहिए because हम लोग, I'll repeat the question for everybody, कि हम तो जानते हैं कि अगर किसी ने भगवान की भक्ति पूरा जीवन की है तो अंत में अगर वो भूल भी जाए तो भगवान उसके स्मरण में आते हैं। ये बात भगवान ने टाइम एंड अगेन, इनफैक्ट गरुड़ पुराण में भी ये बात आती है कि भगवान खुद आते हैं उनके स्मरण में। और इनफैक्ट ये बात भगवान ने कांची पूर्ण से भी कही थी। जब रामानुजन ने ये क्वेश्चन पूछा था तब भगवान ने कांचीपूर्ण से कहा था कि मैं कान में आके खुद उस भक्त को मेरी याद दिलाता हूँ। इनफैक्ट हम इस्कॉन में भी देखते हैं बहुत सारे वरिष्ठ भक्त जो किसी कारण अगर इस्कॉन छोड़ भी चुके हैं, कम से कम ऐसी 50 एग्जाम्पल हम अभी खड़े खड़े दे सकते हैं जिन्होंने शायद कुछ दिनों के लिए भक्ति छोड़ दी, डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर भी अंत समय भगवान किसी न किसी कारण उनके जीवन में आए, हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया, भक्तों का संग दिया और उनको अपने भगवत धाम लेके चले गए। तो फिर भरत महाराज के उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? इनफैक्ट हम जिन भक्तों की बात कर रहे वे तो नॉर्मल साधक भक्त है और भरत महाराज तो भाव की स्थिति में थे, फिर भी भगवान नहीं आए अंत में। उसका मतलब दिस क्लियरली शोज़ कि भगवान ये पूरा लीला खुद ही क्या कहते हैं ना, डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, स्क्रिप्ट लिखे हैं हमें एक लेसन समझाने के लिए कि केयरफुल रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। भक्ति में बड़े बड़े लोग भी, जैसे आज सुबह हमारा नित्यम भागवत सेवा में हमारा जो ये कैंटो चल रहा है उसमें ये उस घटना में है अभी हम, जहाँ पे ब्रह्मा अपनी खुद की बेटी पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाक देवता पे, और फिर उसके साथ भोग करने की कोशिश करते हैं। और फिर उनके जो प्रजापति और जो उनके द्वारा सृष्टित उनके बच्चे उन्हें कहते हैं कि ये आपको शोभा नहीं देता, ये आप क्या कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जो है गिल्टी फील होते हैं कि मैंने ये क्या किया, और फिर वो अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। तो ये घटना आज सुबह हमारे भागवतम क्लास में थी। तो दिस क्लियरली शोज़ दैट मीन्स कि ठाकुर जी जस्ट हमें लेसन देने के लिए या हमें समझाने के लिए ये पूरा शो ऑर्केस्ट्रा किया हुआ है, उन्होंने पूरा शो उन्होंने जो है डायरेक्ट किया है। अदरवाइज़ भक्तों की रक्षा भगवान हमेशा करेंगे। पर अब ये बात तो ऐसी हुई ना, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना बच्चों को कि देखो अच्छा से पढ़ो, फुल मार्क्स आने चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे अगर एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे का कोई डिज़ीज़ हो गया, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एनुअल एग्ज़ाम नहीं लिख पा रहा है, फिर भी उसके पूरे साल का रिकॉर्ड देख के उसे प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लास, ये सिस्टम है। सो उसी तरह से अगर हम पूरा जीवन भगवान की प्रार्थना करते, पूजा करते हैं, तो हमारा पूर्व का रिकॉर्ड देख के इस बार अगर एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो गए तो हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस टाइप के प्रमोशन के लिए वेट करेंगे। हम तो यही सोचेंगे कि हम अच्छा से पढ़ाई करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे एग्ज़ाम में, और हम ज़रूर एग्ज़ाम अच्छा से लिखेंगे। तो ये हमें शिक्षा देने के लिए ये पूरा वृत्तांत भगवान ने जो है बनाया है, जहाँ पे देखो एक डियर भी, एक हिरन भी हमें भक्ति स्थान से नीचे गिरा सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हम किन का एसोसिएशन ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टू टीच अस, बाकी उसमें और कोई उद्देश्य नहीं है। अदरवाइज़ क्यों नहीं भरत महाराज को भगवान मदद करेंगे, और इनफैक्ट मदद की भी है, क्योंकि इवन दो उनको छोटा सा पनिशमेंट दिया है, उनको हिरन का शरीर लेना पड़ा, लेकिन हिरन के शरीर में भी उनकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, उनको याद था उनका पूर्व जन्म क्या था, और उसके बाद फिर जड़ भरित का शरीर पाके वे भगवत धाम चले जाते हैं। तो भगवान ने थोड़ी मदद भी की है, थोड़ा सा पनिशमेंट भी दिया है। भगवान आपके जो अत्यंत सन्निहित, मतलब उनके अत्यंत प्रिय भक्त जो होते
उनके साथ वो थोड़ा सा अलग ही व्यवहार करते हैं दूसरों को सिखाने के लिए। जैसे मैं हमेशा क्लासेस में कहती हूँ कि कभी कभी जो एंकर होते हैं वो पूछते हैं डॉक्टर को डायबिटीज़ होने से क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर होने से क्या दवा लेनी चाहिए, तो शायद ऑडियंस को ये समझ में आता है कि हाँ हमारे लिए एंकर पूछ रही है, लेकिन ऑडियंस ये तो नहीं सोचता कि अरे इस लेडी को कितनी डिजीज़ है, कल बीपी के बारे में पूछ रही थी, आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछ रही है, परसों कैंसर के बारे में पूछ रही थी, इतनी डिजीज़ है क्या उसको? नहीं, उसको तो कोई डिजीज़ नहीं है, हमारे लिए पूछ रही है। उसी तरह से भरत महाराज तो भाव के स्टेज में है, हमारे लिए पूरी घटना दिखा रहे हैं कैसे उनका पतन हो रहा है, क्या हो रहा है, सो दैट हम सावधान रहे कि हमें केयरफुल रहना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े लोग गिर जाते तो हम तो बहुत छोटे भक्त हैं। बस ये लेसन सिखाने के लिए ये पूरा जो है ड्रामा किया जा रहा है। Well, I would say that one can have many Siksha Gurus, but one should still have one single mentor. So even if you are taking inspiration from many, instruction can be taken from one. I'm answering the questions in English. ये ठीक है? Yes, ma'am. मैंने पहले वाला भी इंग्लिश में आंसर किया क्या? ओके तो बहुत सारे शिक्षा गुरु हम स्वीकार कर सकते हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है हमें एक ही पर्सन से लेना चाहिए। तो क्या होगा, तभी हमारी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी कर्ब होगी और हम सही दिशा में जाएंगे। जो हमें टोकेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, और तब क्या है हम अपनी इच्छा के बदले में उनकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। तो ये होना चाहिए, इंस्पिरेशन फ्रॉम मैनी, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन। सो आप कह रहे हैं कि हाँ मैं चैंटिंग नहीं करती हूँ और चैंटिंग करने के लिए मैं कैसे अपने आप को प्रोत्साहित करूँ। तो आप ऐसे कोई चैंटिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, या आपके एज के जो बच्चे हैं उनके साथ में आप जैसे कहते हैं बड़ी सिस्टम, वो कितना चैंट कर रहे हैं आप कितना कर रहे हैं, ऐसा कोई ग्रुप में डालिए, एक दूसरे से शेयर करिए। और अब जब चैंटिंग से संबंधित क्लासेस सुनिए जहाँ पे पावर ऑफ द होली नेम है, या चैंटिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारे अगर आप सुनेंगे तो आपको उत्साह मिलेगा चैंटिंग करने के लिए। कभी कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आती है या करने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। एक्चुअली कोई भी चीज़ की वैल्यू होती है तो उसको करने का अपने आप से उत्साह आता है, अच्छा लगता है। जैसे हम कभी कभी जैसे हमारे मन में आता है कि व्हाट्स इन दैट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा। कभी कभी हमें चाहिए इमीडिएट रिजल्ट चाहिए कुछ चीज़ के लिए कि क्या मुझे चैंटिंग करने से ऐसा कुछ। सो जस्ट कोई ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, या अपने फ्रेंड सर्कल में जो चैंटिंग करते हैं उनके साथ में कोई ग्रुप बनाइए और चैंटिंग से संबंधित कुछ क्लासेस सुनिए हरिनाम की महिमा की, तो आपको इंस्पिरेशन देगी। और ऐसा कोई व्रत ले लीजिए, जे इतना तो मैं करूँगी, उसके पहले मैं what समथिंग दैट यू लाइक, जैसे कोई चीज़ अगर आपको बहुत अच्छी लगती है करने के लिए, आई डोंट नो व्हाट, जैसे कोई चीज़ है ये करने में आपको आनंद देता है, तो यू जस्ट टेल योर सेल्फ कि जब तक ये राउंड 4 राउंड्स या 8 राउंड्स या नहीं होगा, या 16 व्हाटएवर यू आपका जितने राउंड्स आप करते हो नहीं होगा, तब तक मैं ये नहीं करने वाली हूँ। तो अपने आप से सीधा कि साम दंड के कहते हैं ना भेद, मतलब अलग अलग तरीके से, या तो अपने मन को कोएक्स करो, प्यार दो, या तो बीट करो, या तो किसी से डांट, मतलब जस्ट सी व्हाट विल इंस्पायर यू। कोई पर्क दो मन को कि मैं ऐसा दूंगी अगर ये चैंटिंग कंप्लीट होगा तो, समथिंग लाइक दैट। यू कैन ट्राई डिफरेंट वेज। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम आप पूजा करना चाहिए कि नहीं? नो, नहीं करना चाहिए। ना पूजा करनी चाहिए, ना तुलसी पूजा करनी चाहिए, ना तुलसी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ना भगवान को भोग धरना चाहिए। आपके घर में जो है उनके द्वारा करिए। ये सारी चीज़ों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। आपके घर के डीटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या आप मंदिर जाती है डीटीज़? ओके, क्या आप रोज़ जाती है टेम्पल में डीटी सर्विस के लिए? ओके, ऑल राइट। तो कोई बात नहीं, जब हफ्ते में 3 दिन आपकी डीटी सर्विस होती है तब चैंटिंग सुबह नहीं कंप्लीट होती है, थोड़ी देर हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप भगवान की सेवा में है, वो भी मंदिर के विग्रह की सेवा में है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं है, आप तो उन दिनों में चैंटिंग जो भी आपके, अगर आप उन दिनों में सुबह डीटी सेवा करती है तो आपकी चैंटिंग दोपहर को या
या शाम को, मुझे पता नहीं कैसा आपका स्केड्यूल है, आप शिफ्ट करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंप्लीट हो जानी चाहिए। सी आइडियली सुबह होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि उसका एक हार्ड एंड फास्ट है कि होनी ही चाहिए कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। सेवा है तो सेवा है, आपको एक इम्पॉर्टेंट सेवा दी गई है, सो डेकोरेटिंग द डीटीज़, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर उस दिन आप अपनी चैंटिंग दोपहर को कर लो या कोई और टाइम पे कर लो। और माता जी रिलेटेड अभी आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, तो अगर सपोज आप मतलब हमें अपने साइकिल में पीरियड्स टाइम में सर्विस नहीं, मतलब भगवान की कोई वो नहीं करनी चाहिए, तो सपोज आपके घर में कोई भी नहीं है करने के लिए, तो उस केस के अंदर आपको सर्विस छोड़ देनी चाहिए भगवान की या करनी चाहिए? देखिए इसके दो आंसर्स है। एक जो मैंने इस्कॉन के प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स माता जी लोग जो वरिष्ठ हैं उनसे सुना, वे कहते हैं कि जब कोई नहीं होता है तो आप कर सकते हो, घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो तो आप करो। और एक ये है जो हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं, हमारी वैदिक कल्चर, जहाँ पे अगर कोई नहीं है फिर भी भगवान को उस टाइम पे नहीं छूते। तो ये आपका टेक है, आप क्या फॉलो करना चाहते हो, बट मैं पर्सनली मेरे लाइफ में यही प्रेफर करती हूँ कि उस टाइम पे भगवान की सेवा अगर कोई नहीं भी हो तो दूर से भगवान को माफ़ी मांग के कि मैं अपवित्र हूँ इस समय पे और ये 3 दिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ ठाकुर जी, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो भी प्रसाद का कुकिंग होता है वो भगवान को ऑफ़र नहीं करते हैं, उसको हमारे मतलब किचन में ही या जहाँ भी हम बनाते हैं वहीं बस भगवान का नाम लेके उसको ले लेते हैं। और ठाकुर जी को किसी के हाथ से या आपको तो अगर आपकी डेट जैसे आपको पता है तो शुरू से कुछ फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब आप रख सकते हो आपके घर के ऑल्टर में, या कोई भी जैसे आपके घर में कोई आता जाता हो या किसी को आप कह दो थोड़ा पानी चेंज करके रख दो भगवान के लिए, बस वो पानी चेंज कर दो, फ्रूट्स रख दो, ड्राई फ्रूट्स रख दो। लेकिन भगवान की इस विग्रह की सेवा उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, कपड़े बदलना या भगवान का अभिषेक करना या ये नहीं टच करना चाहिए भगवान की डीटी पैराफर्नैलिया वगैरह। तो दिस इज़ द 2 थिंग्स वेयर ये अलग अलग जगह से रिसर्च किया हुआ है। और यहाँ पे जैसे हमारा इस्कॉन इज़ अ प्रीचिंग मूवमेंट, तो यहाँ पे सो मेनी कंसेशंस आर गिवन, बट आई लीव इट अप टू यू, और मे बी यू कैन चेक दिस विद अदर डिवोटीज ऑल्सो, बट दिस इज़ माई टेक ऑन दिस कि नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। या सो अभी आप फील कर रही है कि मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे उठना चाहिए, यह फीलिंग आप में आई है, तो बस इस फीलिंग को कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यूसली और क्लास सुनते रहिए, इंस्पायर होते रहिए। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शादी होने के बाद इमीडिएटली बच्चा नहीं पैदा होता, 9 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। उस तरह से भक्ति जीवन में आने के बाद इमीडिएटली हम प्योर डिवोटी नहीं बन जाते, इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, धीरे धीरे कभी नीचे गिरेंगे, कभी उठेंगे, जैसे कि कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है, कभी गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है। बस यही है हमारे भक्ति जीवन भी, हम कोशिश करते हैं, फिर कभी कभी नहीं होता, फिर से कोशिश करते हैं, ऐसे करते 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 एक दिन हम सही लाइन में आ जाते हैं। तो कीप डूइंग, यही है उसका सोल्यूशन, कीप ट्राइंग। अभी इसमें भी एक ये है, जैसे साधारण एक 6 आवर्स या 7 आवर्स मैक्सिमम, 6 आवर्स स्लीप इज़ इनफ फॉर ए हेल्दी पर्सन। बट अगेन सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग है, किसी का शरीर पित्त वाला है, किसी का, सो अलग अलग बॉडी को अलग अलग नींद चाहिए। तो आपको कितना नींद चाहिए, क्या है, उसके अनुसार आप अपना टाइम सेट कर लीजिए कि आपको कितने घंटे नींद की ज़रूरत है। एज ए हाउस वाइफ शायद बच्चों के साथ में यू मे बी हैविंग सो मेनी थिंग्स टू डू, आप आफ्टरनून में थोड़ा सा नैप ले लीजिए। जस्ट चेक योर स्केड्यूल, सिट ऑन ए टेबल, टेक अ पेपर एंड पेन, एक्चुअली राइट डाउन द होल थिंग एंड जस्ट सी वेयर यू कैन डू व्हाट, उसको सेट करिए पूरा।
इसलिए दोपहर का सोना कैंसिल हुई। तो फिर मैंने क्या किया, मतलब रात में फिर क्या हो रहा है, रात में इवन जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ तो भी मतलब बच्चों की वजह से सो नहीं पाती हूँ। सो लाइक मेरा नींद इतना डिस्टर्ब हो चुका है इन बिटवीन कि मतलब मॉर्निंग तो उठने का मतलब हो ही नहीं रहा है, मॉर्निंग टाइम पे सोना नहीं हो रहा है, और मतलब कंटिन्यूअस वर्क करते जाते तो करते ही जाते हैं। अपना घर का कैसा होता है माता जी बच्चों के साथ, तो बच्चों को ही जल्दी सुला दो, यहाँ कल्प्रिट बच्चे ही है लग रहा है। यही नहीं हो पा रहा है माता जी, ये तो प्रॉब्लम है मेरी। मतलब समर है तो बच्चों को खेलने देने का भी मन होता है, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, नहीं खेलेंगे। नहीं मतलब रात को मत खेलने दो, दिन में खेलने दो। फिर 8 o'clock तो सन होता है ना माता जी, फिर 8 o'clock यहाँ पे सन होता है। ओके, मुझे आपका मैथमेटिक्स पता नहीं है वहाँ का, जहाँ भी जैसे कंट्री से है, बट जस्ट यू नो द बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके अनुसार आप सेट कर लीजिए। I will pray for you. या इट्स जस्ट दैट जब हमारा कनेक्शन ठीक होता है कृष्ण के साथ, सब ठीक लगता है। जब कनेक्शन लूज़ हो जाता है, माया के साथ कनेक्शन हो जाता है, तब भक्ति में स्वाद नहीं आता। अगर श्रवणम कीर्तनम अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है। द होल पॉइंट इज़ जब हेल्थ ठीक नहीं होती है तब वीक फील होता है। हेल्थ ठीक करनी है, मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक करना मतलब श्रवणम कीर्तनम ठीक से होने से सेवा करने में आनंद आता है। तो द होल पॉइंट इज़ बेसिक उसमें ही जाना। जैसे मैं हमेशा क्लासेस में कहती हूँ कि अगर कुछ बॉयल होता है तो बर्फ़ लगा सकते हैं, लेकिन बर्फ़ लगाना सोल्यूशन नहीं है। बॉयल क्यों हुआ है, मतलब ब्लड में खराबी है, ब्लड में खराबी है मतलब साफ़ी पीना है, साफ़ी पीने से ब्लड प्योर हो जाता है, फिर कभी भी बॉयल नहीं आएगा। तो कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता है, उसका मतलब श्रवणम ठीक नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली द ओरिजिनल प्रॉब्लम है। अगर श्रवणम ठीक होगा तो हमेशा ही अच्छा लगेगा। You mean to say, how do I know that I am progressing in Krishna consciousness? If I am able to chant my 16 rounds during Brahma Muhurta, does it mean that I am progressing in Krishna consciousness? It's not about progressing in Krishna consciousness. You are just doing the right things to progress in Krishna consciousness. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया मतलब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे जा रही हूँ। अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में मेरे 16 माला कंप्लीट कर रही हूँ मतलब प्रोग्रेस करने के लिए राइट दिशा में जा रही हूँ, बट केवल उससे ही मेरा प्रोग्रेस हो रहा है ये कहना ठीक नहीं होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट हाँ सही दिशा में जा रहे हैं प्रोग्रेस करने के लिए। सी देयर आर सर्टन, हिंदी में देखिए कुछ है एकदम आइडियल स्टैंडर्ड, बिना हिले बिना मन को इधर उधर किए एक ही जगह में बैठ के आँखों को बंद करके जोर से मंत्र को सुनते सुनते, जैसे कहते हैं ना 3 चीज़, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, सुनना एकदम ध्यान से सुनना चाहिए एक एक मंत्र को, ये सारे आइडियल कुछ है, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, ये हमारा गोल है। तो उस गोल की तरफ धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं हो रहा है। मतलब मैं क्यों ये कह रही हूँ, कभी कभी जैसे कोई बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं ना जो अचीवेबल नहीं है तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए। जैसे अगर मैं देखूँगी एक साथ में मुझे 108 सीढ़ी चढ़नी है तो मुझे लगेगा अरे बाप रे मुझसे नहीं होगा, लेकिन अगर मैं सोचूंगी नहीं मैं सिर्फ 5 सीढ़ी चढ़ूंगी उसके बाद मैं डोली कर लूँगी, कोई बात नहीं, तो ठीक है मैंने आज 5 सीढ़ी चली, कल और 10 सीढ़ी चढ़ूंगी और धीरे धीरे मुझे लगेगा कि मैंने जो गोल बनाया मैं सक्सेस, मैंने सोचा था 5 मैंने 5 किया। उसी तरह से आप छोटे छोटे गोल बनाइए। 16 माला भी भूल जाइए, एक माला परफेक्टली करूँगी, एक एक शब्द को सुनूंगी, अच्छा से करूँगी, बाकी के 15 राउंड जैसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन एक माला तो अच्छे से करूँगी। फिर धीरे धीरे 2, 4 ऐसा आप छोटे छोटे गोल बनाइए, फाइनली अचीव करिए। एक साथ में एकदम आइडियल गोल जो आप सीनियर्स से क्लासेस में सुनते हैं उसको बनाएंगे तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे।
क्या क्या आप अचीव करना चाहते हैं, जिनके जिनके क्लास से आपने सुनी है, पहले पेपर में लिख लीजिए कि ये आइडियल है, एक दिन ऐसा अचीव करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही अचीव करने का मेरा गोल है। बस इस महीने के एंड तक एक राउंड तो परफेक्ट बैठ के करूँगी, या 8 माला तो एक ही सिटिंग में करूँगी। ऐसा धीरे धीरे गोल बना दीजिए, दैट्स इट। बट मैं कोई भी चीज़ को ये गलत है, ये एकदम सही है, मैं ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है। सो दैट्स अ थिंग। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा